A very good afternoon, dear participants. I welcome you all for the final session of the Faculty Development Program. I welcome Professor Rachna Asthana ma'am also for this session. Professor Rachna Asthana ma'am is currently serving as Director of our institute, that is Dr. Ambedkar Institute of Technology for Handicapped, Kanpur. Professor Rachna Asthana is currently Chairman of Board of Studies of Human Values at Dr. APJ Abdul Kalam Technological University, Lucknow. Despite being from engineering background, Dr. Asthana started working on human values from year 2007. I request ma'am to kindly take on the session from here onwards. सभी को नमस्कार. मैं ऑडिबल हूँ? Yes ma'am, you are audible, but your video is not available ma'am. Okay, allow me to share video. Yeah ma'am, can you please check we have allowed from this side? Okay, screen sharing is there? Yes ma'am, your presentation is visible as well as your voice is also very clear. Okay, thank you. So this session is something about human values. So it is now everybody has started feeling that despite all the education which we are giving to the student, we all are experiencing that something is missing. Whatever education is we are giving to the people, to the engineering, especially if we talk about technical persons, to the engineering students, then what is the outcome of that education? Something is missing. So all of us, as everybody knows, the mind thinks in the same way. So everybody started thinking based on the social conditions. Despite all the efforts, despite all the inputs given to the education, we are not able to get what has to be there. For example, we have developed a lot of technologies, but what is the result of those technologies? Now we are living in a world where even the clean air and clean water, that has become a scarcity. So what is the problem? Where we are going? So all these things comes into mind of everybody. So depending upon that, the AICT has also launched. So in this session, basically we are going to discuss basic human aspiration and its fulfillment, and then holistic development and the role of education. We come to that. So this AICT has taken initiative to include this sanskar part. If you look at it, shiksha sanskar, we talk about shiksha sanskar. So education is there already, but the sanskar part is somehow missing. So as AICT started, I'm not able to see my screen. Okay. So AICT has taken a step to fill the crucial missing link, and that crucial missing link was, if you think on your own self, then you lead to this sanskar part. That sanskar part is missing. So what is this sanskar part? ये कहाँ से आता है, कैसा है? So इसको हम कह सकते हैं मानवीय दृष्टि. क्या आप सभी हिंदी से किसी को प्रॉब्लम है, या सब लोग हिंदी समझते हैं? कितने लोगों ने भी ज्वाइन कर रखा है? If all the participants, क्या सभी मैं हिंदी में भी डिस्कस कर सकती हूँ? Ma'am, most of our participants are from northern India only, so Hindi will be fine. लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी को कोई समस्या हो तो आप हाथ उठा सकते हैं, तो हम उसको वो भी कर लेंगे. The participants, if you are unable to understand the content of ma'am in Hindi, one can raise their hand on the option provided in the Zoom, so ma'am can switch on to the English mode of the communication. तो जो ये संस्कार है, इस संस्कार के पार्ट हैं. सबसे पहले तो हमें एक मानवीय दृष्टि की तरफ देखना पड़ेगा. ह्यूमन वर्ल्ड व्यू, पर्सपेक्टिव, मानवीय दृष्टि वो क्या होनी चाहिए?
तो उसके लिए एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो डेवलप हुई है उनका क्या होना आवश्यक है। जो भी हम जिसकी भी बात करें, दे हैव टू बी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब सभी के लिए वो एक समान होनी चाहिए। सभी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर लोगों के लिए है, एक पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए वो होना चाहिए। दैट इज यूनिवर्सल। इट हैज टू बी रेशनल, देन इट हैज टू बी वेरीफाइबल। हम लोग उसको वेरीफाई कर सके। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैंने कह दिया या XYZ किसी ने कह दिया इसलिए आप इसको मान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी एबल टू वेरीफाई इट ऑन इट्स ओन बेसिस। और दूसरी चीज, ये एक लीडिंग टू हार्मोनी, जो भी हमारी पास वैल्यूज हो उससे एक हार्मोनी की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे कॉन्ट्रडिक्शंस आए। तो इस तरह की यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज होनी चाहिए जिनको हम मानवीय मूल्य कह सकते हैं। अब उन मानवीय मूल्य की बात जब हम करेंगे तो उसके बाद जो भी हम टेक्नोलॉजी, जो भी स्किल्स हम ह्यूमन कंडक्ट में डेवलप करते हैं वो इन वैल्यूज के थ्रू गाइडेड होनी चाहिए, जो शायद आज की टेक्नोलॉजी उसमें कहीं मिसिंग है। हमारी जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी स्किल्स हैं, वो वैल्यू गाइडेड नहीं है। तो उनको वैल्यू गाइडेड होना भी एक बहुत जरूरत है। तो जब हमारे पास एक मानवीय दृष्टि होगी, मानवीय मूल्य होंगे, उन मानवीय मूल्यों के साथ में जो हमारी स्किल्स डेवलप होंगी तो उससे एक ह्यूमन सोसाइटी का निर्माण होगा, एक मानवीय व्यवस्था होगी। वो कैसी होगी? जो इक्विटेबल सोसाइटी होगी, सभी को उसका अपना स्थान प्राप्त होगा। तो इस तरह के एक ऑर्डर की हमको एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। और इसको मिसिंग लिंक को फुलफिल करने के लिए एक ह्यूमन को समझना वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमारी जितनी भी शिक्षा है उसमें क्या हम कहीं ह्यूमन की बात करते हैं? ह्यूमन नेचर की, ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन एस्पिरेशंस की, उस तो कहीं भी पूरी शिक्षा में इसकी बात नहीं होती है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अगर एक देखा जाए क्या ह्यूमन की बात कहीं की जाती है? मानव की क्या इच्छाएं हैं, उसके क्या एस्पिरेशंस हैं, उसका क्या आचार होना चाहिए, इसकी बात कहीं भी नहीं होती है। तो इसको AICTE ने इंक्लूड करने का अब बना लिया है, और इंजीनियरिंग एजुकेशन में तो ये सब जगह इम्प्लीमेंट हो भी रहा है। तो हम इसी पे आगे चलते हैं। आप म्यूट हो गए मैम। या मैम, नाउ इट्स फाइन मैम। हाँ, म्यूट हो गए थे। ठीक है, अब अनम्यूट हो गए ना? जी मैम, जी तो मैम। हम लोग आज के सेशन में ये देखना चाहेंगे कि आखिर हमारी मानव की मूल चाहना क्या है, बेसिक एस्पिरेशन है क्या, और उस क्या वो बेसिक एस्पिरेशन पूरे किए जा सकते हैं, और पूरे किए जा सकते हैं तो किस तरह किए जा सकते हैं। तो जब हम अपनी चाहना को, अपनी बेसिक एस्पिरेशंस को देखेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही हमारा समग्र विकास हो सकता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको बात हम कहते हैं। और इस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में एजुकेशन की क्या भूमिका है, इसको भी समझने की जरूरत है। तो जो आज का हम लोग सेशन करेंगे, इससे हमें 3 के बारे में पता चल पाएगा। एक्चुअली इसके लिए, ह्यूमन वैल्यूज के लिए एक पूरा 7 दिन की वर्कशॉप होती है। तो उस 7 दिन के कोर्स में क्या रहता है इसके बारे में पता चलेगा, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, और उसके बाद जो हमारे अंदर एक समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उससे हम क्या भविष्य में अचीव कर पाएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस पूरे प्रपोजल में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो एक प्रपोजल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो कहा जा रहा है वो सच है या वो गलत है। आप इसको अपने अपने स्वयं के अधिकार पर इसको आपको जांचना है, अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर इसको जांचना है।
अब एक प्रश्न उठता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, सहज स्वीकृति क्या है? तो आप खुद देखते जाइए, अगर कहीं भी कोई चीज सही हो रही है तो कहीं अंदर से आप उसके लिए एक स्वीकृति बनती ही है, सभी के उससे एक स्वीकृति आती है, तो वो एक सहज स्वीकृति है। हम उसको, जिस चीज के लिए हमारी स्वीकृति आती है, उसको हम आगे कर पाए या ना कर पाए, वो एक अलग इशू है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जीवन में बहुत सारी बाइसिंग हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी कहीं भी कोई भी चीज सही हो रही होती है तो एक अपने अंदर से एक उसके लिए नेचुरल एक्सेप्टेंस तो होता ही है। इसको आप सब लोग खुद में भी देख सकते हैं। कहीं भी कोई भी आपको अगर कोई सही चीज है तो क्या आप उसको स्वीकार कर पाएंगे? तो जिस चीज को आपकी सहज स्वीकृति स्वीकार कर पाए उसी को हम सहज स्वीकृति कहते हैं, जो आपका मन मानने को तैयार हो जाए बिना किसी बायसिंग के, तो वो नेचुरल एक्सेप्टेंस हो गया। तो जो कुछ भी कहा जा रहा है वो एक प्रस्ताव है, ऐसा नहीं है कि एक कोई आपको दीक्षा दे दी गई, आपको कोई एक उपदेश दे दिया गया कि जो कहा गया है उसको आप मान लो, ऐसा नहीं है। जो भी कहा जा रहा है उसको आप जांच करके देखिए, इसको वेरीफाई करिए आपके अपने स्वयं के क्षेत्र पे, अपने स्वयं के अधिकार पे, कि ये जो कहा जा रहा है क्या वो मुझको स्वीकार्य है। अगर वो स्वीकार्य है तो वो ठीक है, अगर वो मुझको स्वीकार्य नहीं है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके आधार पर ये पूरी बात कही जा रही है, इसको हमेशा जांचने की आवश्यकता है। कभी भी कहीं भी आप कुछ भी मानिए मत, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज को आपको आंख बंद करके मान लेना है। तो बेसिकली ये एक संवाद की प्रक्रिया है, एक संवाद है। अभी जब शुरू हो रहा है तो ये संवाद आपके और हमारे बीच में है। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप उसको सुन रहे हैं, साथ साथ में आप भी अगर कुछ कहेंगे तो वो भी हम सुनेंगे। तो इसको बीच में इंटरेक्टिव सेशंस भी होता है। ऑफलाइन में भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आते हैं, कोई प्रश्न आते हैं, तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो बेसिकली अभी ये जो शुरुआत होती है तो ये एक हमारे और आपके बीच में एक संवाद हो रहा है। फिर उसके बाद जब आप एक बार इससे गुजर जाते हैं, एक बार इससे हो जाते हैं, तो ये संवाद आपके अंदर अपने आप चालू हो जाता है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक प्रक्रिया है, बस इसको एक बार शुरू करने की जरूरत है। एक बार ये शुरू होता है तो फिर इसका ये कभी खत्म नहीं होता, फिर कंटिन्यूअसली आपके अंदर ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। क्योंकि जब भी कोई भी चीज आपके सामने आती है, आप कि कोई भी प्रस्ताव आता है, कोई भी बात आती है, तो तुरंत आप उसको अपने स्वयं के अधिकार पर जांचना और परखना शुरू कर देते हैं जब कुछ किसी भी बात होती है। तो इसलिए ये तो एक प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रक्रिया चलती है, इसको कहीं भी बंद करने की जरूरत नहीं है। फिर जब ये आपके अंदर शुरू होता है तो फिर ये बात आती है कि आप क्या हैं और एक्चुअली आप क्या होना चाहते हैं, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर, आपकी सहज स्वीकृति के आधार पर। बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ में करते हैं जो हमारे अंदर से इसकी इच्छा नहीं होती करने की, पर कुछ प्रेशर में, कुछ दबाव में, कुछ मजबूरियों के वश हमें बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो हमारी सहज स्वीकृति, जिनके लिए हमें अनुमति नहीं देती है। तो जब ऐसा होता है तो हम थोड़ा सा परेशानी में आते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस होता है। तो जब ये डायलॉग शुरू होना होता है तो आपको अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर आप क्या हैं और आप क्या होना चाहते हैं, इसके बारे में भी आपको क्लियर दिखने लग जाता है। और इस वर्कशॉप का या इस सेशन का यही पर्पस है कि ये इंटरनल डायलॉग शुरू हो जाए आपके अंदर। एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें आप अपनी जिंदगी की अपने आप सही करने लग जाते हो। सबसे पहले तो हम अपने लेवल पर देखना चाहते हैं कि हमारी चाहना क्या है। आप सब इंडिविजुअल अपने अपने आप में देखिए, डू वी वांट टू बी हैप्पी? क्या हम सुखी होना चाहते हैं? तो क्या यहाँ पर जितने लोग हैं इसमें जुड़े हुए, मैं देख रही हूँ 55 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, तो क्या हम में से कोई भी ऐसा है जो सुखी नहीं होना चाहता है? सभी आप सभी लोग अपने आप से प्रश्न करके देखिए। एक तो ये है, क्या हम सुखी होना चाहते हैं? दूसरा ये है, डू वी वांट टू बी प्रॉस्पेरस? क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं? तो ये भी मूलभूत चाहना है, हम सभी समृद्ध भी होना चाहते हैं। हमारे बीच में शायद ही कोई ऐसा हो जो ये कहे कि नहीं, हम समृद्ध नहीं होना चाहते हैं या हम सुखी नहीं होना चाहते हैं। उसके बाद तीसरी बात आती है कि क्या हम इस सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं, इसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं? तो कौन नहीं चाहता है, हम सभी चाहते हैं हैप्पीनेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो और इसकी कंटिन्यूटी भी बनी रहे। तो बेसिक चाहना तो हम सबकी यही है
आप सब लोग इसको अपने अपने स्तर पर वेरीफाई कर सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए अपने बिजी शेड्यूल से, अपने उससे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेकर के इसको सोचिए, क्या हम सुखी होना चाहते हैं? हम का मतलब हम अपना इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। क्या आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर देखिए, क्या आप सुखी होना चाहते हैं? क्या आप समृद्ध होना चाहते हैं? क्या हम इस सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं? इसको देखिए और फिर बताइए कैसा लगता है। एवरीबडी ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मुझे लगता है जब आप लोग खुद अपने स्तर पर देखने जाएंगे तो इसका इन सभी प्रश्नों के जवाब तो हाँ में ही आएंगे, क्योंकि हर कोई सुखी होना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है, और उस सुख समृद्धि की निरंतरता भी हम चाहते ही हैं। अब अभी हम क्या हैं, स्टेट ऑफ बीइंग व्हाट वी आर टुडे ना, हम क्या चाहते हैं ये तो ठीक है, हम सुखी होना चाहते हैं, लेकिन क्या अभी हम सुखी हैं? क्या अभी हम समृद्ध हैं? और उसके बाद अगर हम हैं तो क्या हमारे सुख और समृद्धि की निरंतरता है? अभी तो आप पूछने जाइए तो जितने लोगों से पूछिए, शायद ही कुछ लोग कहेंगे हाँ हम सुखी हैं। सुखी कहना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ का जवाब आपको मिले कि हम सुखी हैं। लेकिन समृद्ध है, समृद्ध की फीलिंग तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि हम सुखी और समृद्ध हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सुख और समृद्धि की निरंतरता की, तो निरंतरता की बात तो जब आप सुखी और समृद्ध पहले होंगे तभी निरंतरता की बात आएगी। तो पहले इसको हमें अपने लेवल पर प्रश्न करके देखना है, हम सुखी हैं, हम समृद्ध हैं, और क्या हमारे अंदर इस सुख और समृद्धि की निरंतरता है? इसको भी थोड़ी देर सोचने की जरूरत है, अपने आप में इसको परखने की जरूरत है, अपने आप से इस पर प्रश्न करने की जरूरत है। प्रश्न करके देखिए, क्या हम सुखी हैं, क्या हम समृद्ध हैं, और क्या हम कंटिन्यूअसली इस सुख और समृद्धि की कंटिन्यूटी हमारी लाइफ में है? तो अब ये गैप क्यों है? हम सभी लोगों ने अपने आप से प्रश्न करके देखा, हम अपने आप को सुखी नहीं कह सकते, समृद्ध नहीं कह सकते हैं, अगर कह भी सकते हैं तो उसकी निरंतरता की बात तो नहीं आती है। तो ये गैप क्यों है, जो हम चाहते हैं और जो हम हैं, between our desire and our state of being, between what we really want to be and what we are? What are we doing to fill this gap? Is it getting filled up or getting wider? We will explore into this. ठीक है, तो अब ये देखिए कि हम जो चाहते हैं और हम जो हैं, क्या उसमें कोई समानता है? क्या हम सुखी होना चाहते हैं तो हम सुखी हैं? ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर नहीं है तो हम सुखी होने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, समृद्ध होने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, और क्या हम इस गैप को फिल कर पा रहे हैं, या हम सुखी होने के लिए प्रयास तो निरंतर किए जा रहे हैं, समृद्ध होने के लिए प्रयास तो हम निरंतर लगे हुए हैं, हम सभी लोग जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं उससे क्या जो हम चाह रहे हैं वो पूरा हो पा रहा है? क्या हम सुखी हो पा रहे हैं? क्या हम समृद्ध हो पा रहे हैं? होता क्या है, हम जॉब करने जाते हैं, इसलिए करना चाहते हैं कि हमें रेगुलर इनकम होने लग जाएगी, हमारा परिवार चलने लग जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, हम समृद्ध हो पाएंगे। पर होता क्या है, आप सब लोग इसको फेस कर रहे हैं, हम जाते हैं, जब जॉब करने जाते हैं क्या होता है, 10 तरह के प्रेशर्स आते हैं, ये होता है, वो होता है, हम सुखी होने की जगह हम रोज इसी में उलझे रहते हैं। अरे आज तो ऐसा हो गया, आज तो हम बहुत दुखी हो गए, आज तो ऑफिस में ये हुआ, आज तो यहाँ हम काम कर रहे थे, वहां ये हुआ। तो ये गैप फिल नहीं हो रहा है, ये और बढ़ता जा रहा है। तो हमें इसको कहीं तो देखना, जांचना, परखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसको हम कैसे इस गैप को फिल कर सकते हैं। हमारी चाहना सुखी होने की है, और हमारा प्रयास सुख और समृद्धि की निरंतरता के अर्थ में है, या केवल सुविधा संग्रह के अर्थ में है? ये फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। हम खाली एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी के लिए लगे हुए हैं, हम जॉब करते हैं, सैलरी आती है, हाँ आज ये खरीद लेना है, आज वो खरीद लेना है, यही तो, इसी सब कामों में तो हम लोग लगे हुए हैं।
या हम सुख समृद्धि की निरंतरता के अर्थ में भी कुछ कर रहे हैं? इसको भी अपने आप में विचार करके देखिए क्या होता है। क्या हम सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी संग्रह करने में लगे हुए हैं, या कुछ हम अपनी सुख समृद्धि की निरंतरता के अर्थ में भी कुछ कर रहे हैं? इस पे थोड़ा सा विचार करिए, क्या कर रहे हैं हम और क्यों कर रहे हैं। शायद कहीं हमने ये एज्यूम कर रखा है कि अगर हमारे पास सुविधा संग्रह हो जाएगा तो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाएगी। सुविधा संग्रह को आप फिजिकल फैसिलिटी कह सकते हैं। फिजिकल फैसिलिटी मतलब जैसे आजकल के उसमें आपको एक एसी कमरा मिल गया, बढ़िया कुर्सी मिल गई, बढ़िया खाना पीना मिल गया, सोने के लिए एक अच्छा घर हो, रहने के लिए एक अच्छा घर हो गया, एक गाड़ी हो गई। तो क्या इन फिजिकल फैसिलिटी से ही हमको हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी? फिजिकल फैसिलिटी हमें सुख और समृद्धि की कंटिन्यूटी इंश्योर कर सकती है? हम सभी ने ऐसा मान रखा है, क्या वाकई ऐसा है? और फिजिकल फैसिलिटी इकट्ठा या सुविधा संग्रह इकट्ठा ना करने के सिवा और हम क्या कर रहे हैं? What effort are we making other than accumulation of physical facility? फिजिकल फैसिलिटी इकट्ठा करने के सिवा हम और क्या कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए? इसके ऊपर देखिए, विचार करिए, हम क्या करते हैं अपनी सुख और समृद्धि के लिए। अब अगर हम थोड़ा सा अपने मानव से अलग हट करके देखें, अगर हम पशु को देखें तो जब पशु को फिजिकल फैसिलिटी या सुविधा का अभाव होता है तो हम देखते हैं थोड़ा वो परेशान होता है, और उसको वो सुविधा मिल जाए तो आराम में आ जाता है। जैसे आप गाय का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब तक उसको चारा नहीं मिलता इधर उधर भटकती रहती है। एक बार खाना मिल जाए, चारा मिल जाए तो आराम से, सभी लोगों ने देखा होगा, गाय आराम से बैठ जाती है, खाती है और उसके बाद अपना जुगाली करती रहती है और निश्चिंत होकर के बैठ जाती है। तो ये तो हो गई पशु की बात। लेकिन अगर आप अपने ह्यूमन को देखिए तो जब हमारे पास फिजिकल फैसिलिटी की कमी होती है, सुविधा का अभाव होता है, तो हम परेशान और दुखी तो होते हैं, है ना? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी लाइट चली जाए, है ना, अभी हमें गाड़ी ना मिले, हमें कहीं जाना हो, कोई सुविधा ना मिले, कोई साधन ना मिले जाने के लिए, तो हम परेशान और दुखी तो होते हैं। लेकिन जब हमको वो सुविधा मिल जाती है तो क्या हम उसके बारे में कुछ कह पाते हैं? उसको लेकर के हम कंफर्टेबल हो पाते हैं? जहां वो सुविधा मिलती है वो हम भूल जाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, भूल जाते हैं, और उसके बाद हमारे दिमाग में और 100 चीजें चलने लग जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब तक भूख लगी रहती है तब तक तो कुछ नहीं सूझता। बस के भूख लगी हुई है, कुछ भी नहीं भाई, कुछ नहीं, अभी हमें कुछ नहीं सुना, पहले खाना ले आओ, या चाय चाहिए, अभी हमें पहले चाय ले आओ, चाय पी ले फिर बात करेंगे। लेकिन एक बार जब चाय मिल गई, जब खाना मिल गया, तो क्या हम आराम में आ जाते हैं? हम आराम से बैठ पाते हैं या क्या होता है? आप इसको सोच के देखिए। जैसे खाना मिलेगा, हमारा पेट भरेगा, है ना, उसके बाद हमारे दिमाग में क्या चलता है? क्या हम सोचना शुरू करते हैं? कैसा होता है? इसको कभी आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस करके देखिए, अपने स्तर पर देखिए, कितनी चीजें हमारे दिमाग में, मतलब बल्कि इनफैक्ट ये कहिए कि जहां पर हमारा पेट भरता है उसके बाद ही हमारी विचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आराम से बैठने की बात तो बहुत दूर की है। अब एक और प्रश्न आता है कि आप अपने आप पर जांच कर देखें, क्या हम इस बात पर खुश होते हैं कि हमको पेट भर भोजन मिल रहा है? जब हमको पेट भर भोजन मिलने लग जाता है तो होता क्या है? यहाँ हमको पेट भर भोजन मिल जाता है, फिर हमको दिखने लग जाता है, अरे भोजन तो मिल गया, अब लाइट नहीं आ रही है, अब पंखा नहीं चल रहा है, अब हमारे पास एसी नहीं है। तो ये सब कब होता है? जब तक पेट खाली रहता है तब तक तो नहीं सूझता है। लेकिन एक बार जब आपको पेट भर भोजन मिल जाता है तो उसके बाद फिर और सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो क्या फिजिकल फैसिलिटी की अगर हम बात करें, सुविधा की हम बात करें, सॉरी, तो क्या ये फिजिकल फैसिलिटी ह्यूमन बीइंग के लिए नेसेसरी है? तो इसका जवाब तो हाँ नहीं है। भाई खाना सभी को चाहिए, है ना, कपड़े सभी को चाहिए, तो फिजिकल फैसिलिटी की आवश्यकता तो है ही है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि एक गाय को या एक पशु को अगर एक बार फिजिकल फैसिलिटी मिल जाती है तो वो आराम में आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, उसके लिए फिजिकल फैसिलिटी काफी है। लेकिन अगर हम मानव की बात करें तो क्या फिजिकल फैसिलिटी पूर्ण होने पर हम आराम में आ पाते हैं? ऐसा नहीं होता। जब हमारे पास फिजिकल फैसिलिटी पूरी हो जाती है, हमारी सुविधा पूरी हो जाती है,
तो हमें कुछ और चाहिए होता है, समथिंग मोर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। व्हाट इज दैट समथिंग मोर? अगर हम उसको देखते जाएं तो थोड़ा सा हम लोग जो अपने परिवार के स्तर पर इसको देख सकते हैं कि हमारे परिवार में जो भी अनहैप्पीनेस है, जो भी दुख है, वो क्यों है? क्या वो सुविधा के अभाव में ज्यादा है या संबंध का निर्वाह ना होने के कारण ज्यादा है? जो हमारे परिवारों में है ना, कभी कभी सभी परिवारों में कुछ ना कुछ कहासुनी होती है ना, कुछ थोड़ा बहुत दुख भी होता है। तो उसको हमें देखने की जरूरत है कि क्या ये फिजिकल फैसिलिटी की कमी के कारण है, सुविधा के अभाव में ज्यादा है, या संबंध का निर्वाह ना होने के कारण ज्यादा है? इस पे विचार करने की जरूरत है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सभी से पूछना चाहूंगी कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपके अपने परिवार में, अपने आप को देखिए, अपने परिवार को देखिए कि आपके परिवार में जो भी समस्या है वो क्यों है? क्या सुविधा के अभाव में है या संबंध का निर्वाह ना होने के कारण है? फिर मान लीजिए सुविधा के अभाव में भी हो सकता है कुछ हो, तो जो ज्यादा समस्याएं हैं वो क्यों है? सुविधा के अभाव में ज्यादा है या संबंध का निर्वाह ना होने के कारण है? इसको आपको देखने की और सोचने की जरूरत है। फिर उसके बाद आपको उसका जवाब मिल जाएगा, है ना। जो हम सभी लोग आज जिस उसमें हैं, जितने लोग यहाँ पर, कम से कम जितने लोग इस समय सेशन में जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सभी के परिवार में जरूरी सुविधाओं की कमी तो नहीं होगी। पेट भर खाना तो हम सभी के परिवार में, खाना, कपड़ा, रहने को घर, ये तो सभी परिवार में सबको मिल रहा होगा, है ना। तो फिजिकल फैसिलिटी की कमी तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या सुख और समृद्धि है ना। फिर अब ये देखने की जरूरत है कि हम सुविधा जुटाने के लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं और संबंध का निर्वाह करने के लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं। अपनी रिलेशनशिप पे हम कितना समय दे रहे हैं, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को समय देने के लिए, और कितना समय हम फिजिकल फैसिलिटी जुटाने में लगा रहे हैं। अभी तो हम सब मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में लगे हैं। हमें सुबह 9 बजे 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना है। अभी हम कानपुर जैसे छोटे शहर में थोड़ा सा कम है, आप दिल्ली और बॉम्बे में चले जाइए तो वहाँ क्या स्थिति है। घर और कार्यस्थल में डिस्टेंस ही इतना है, 1.5 2 2.5 3 घंटे का समय एक तरफ से लगता है। सुबह पता चलता है हस्बैंड वाइफ हैं, सुबह 8 बजे 7 बजे 8 बजे घर से निकल गए, रात को 8 बजे 9 बजे घर आ रहे हैं। किस लिए ये सब कर रहे हैं? बेसिकली सुविधा जुटाने के लिए, फिजिकल फैसिलिटी के लिए। और आपस में संबंधों के लिए क्या समय हो रहा है? रात को आप जब सुबह 7 बजे से निकल करके रात को 9 बजे 10 बजे घर में घुसेंगे, उसके बाद आपके शरीर में कितनी ताकत रहेगी, आप अपने रिलेशनशिप पे कितना समय दे पाएंगे और कितना समय आप दे पा रहे हैं, कितना संबंधों का निर्वाह कर पा रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है। आप क्या कर पा रहे हैं? तो अगर आप सोचने जाइए तो जो हमारे घर में, हमारे परिवार में दुख है या सुख का अभाव है, उसका कारण क्या है ना। अगर आप सोचे तो आप खुद ही इसको वेरीफाई कर पाएंगे, इसको एनालाइज कर पाएंगे कि इसके आखिर कारण क्या है, और हम उसको दूर करने के लिए जहाँ जो कारण है वहां पर कितना समय लगा रहे हैं, और संबंध का जिसकी वजह से है उस संबंध का निर्वाह करने के लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं। इसको बहुत अपने आप में इसको समझने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है ना। अब जब आप इसको पर विचार करेंगे तो ये सभी को समझ में आएगा, क्योंकि सभी के लिए ये सभी इसको देख सकते हैं कि जो परिवार में दुख है वो संबंध का निर्वाह ना होने के कारण ज्यादा है। इससे तो आप सभी सहमत होंगे। लेकिन समय और प्रयास जो हम लगा रहे हैं वो हम सुविधा संग्रह के लिए ज्यादा लगा रहे हैं। जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी परिवार में देखिए, मोस्टली हम लोग अपने काम के और उसके लिए बहुत लगे हुए हैं। सुविधा संग्रह जुटाने के लिए ही सब कुछ हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक हम उसी में लगे रहते हैं। नहीं, मुझे बहुत काम है, मुझे मेरे पास बहुत काम है, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मुझसे ये डिस्कस मत करो, मुझसे वो डिस्कस मत करो। आमतौर पर घरों में यही होता है ना। लेकिन संबंधों का निर्वाह जिसके कारण दुख है, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान जाता भी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा सुविधा संग्रह हो जाएगा, एक टीवी है, एक टीवी और आ जाएगा, एक एसी है, एक एसी उस कमरे में लग जाएगा, तो हमारे परिवार में दुख खत्म हो जाएंगे। पर क्या ऐसा होता है? इसको सोचिए, इसके ऊपर विचार करने की जरूरत तो है ही है कहीं ना कहीं। और अगर हम यही इसी
जो शुरू में मैं कह रही थी कि हमें अब मानव को समझना है। तो हम अगर मानव पे आए तो हमारे लिए सुविधा की आवश्यकता तो है, पे खाना चाहिए ही, आपको कपड़ा चाहिए ही, बाकी सुविधा भी चाहिए, लेकिन क्या सुविधा ही काफी है? ऐसा नहीं है। सुविधा के साथ साथ मानव के लिए संबंध भी आवश्यक है। अगर आप पशु को देखने जाए तो पशु के लिए कह सकते हैं कि सुविधा काफी है, अगर उसको सुविधा मिल जाती है तो वो कंफर्ट पे आ जाता है। लेकिन अगर आप मानव की बात करें तो मानव के लिए सुविधा की जरूरत तो है ही है, लेकिन सिर्फ सुविधा ही जरूरी नहीं है। सुविधा के साथ साथ हमारे जीवन में हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें संबंधों की भी उतनी ही आवश्यकता है। तो अगर आप देखने जाएं तो मानव और पशु के बीच यही एक मूलभूत अंतर है, फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो मानव के लिए सुविधा की भी जरूरत है और साथ साथ संबंधों की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। जबकि पशु के लिए सुविधा आवश्यक है, सुविधा मनुष्य के लिए भी आवश्यक है, लेकिन जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि पशु के लिए सुविधा आवश्यक भी है और पूर्ण भी है, उसको उसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। पर मनुष्य के लिए सुविधा आवश्यक है, लेकिन सुविधा ही एडिक्वेट नहीं है, पूर्ण नहीं। सुविधा के साथ साथ संबंध की भी हमारे जीवन में मानव के लिए, मनुष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम देखते जाए तो इसमें, इस स्लाइड में इसको थोड़ा सा एक समराइज किया गया है। एक हम रिलेशनशिप और संबंध की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग, दूसरे मानव के साथ में संबंध, फिजिकल फैसिलिटी, सुविधा नेचर के साथ में हमें चाहिए। तो सुविधा का मतलब हमारे जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, हमें खाना चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए, ये सारी हमें सुविधा चाहिए। जो फिजिकल, जिसको हम फिजिकल फैसिलिटी भी कहते हैं, तो इस फिजिकल फैसिलिटी की हम सभी को जरूरत है। अब अगर हम इनको कंपेयर करने जाए तो एनिमल्स के लिए खाली सुविधा नेसेसरी है और लार्जली एडिक्वेट भी है, पूरी भी है, लेकिन ह्यूमन के लिए सुविधा ही जो है वो खाली पूर्ण नहीं है, आवश्यक तो है, नेसेसरी बट नॉट एडिक्वेट। सुविधा के साथ साथ हमको दूसरा क्या चाहिए? संबंध चाहिए। हमने रिलेशनशिप, संबंधों की आवश्यकता को समझा तो है, लेकिन उसके बाद भी हम एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं, अपोजिशन भी होता है, फाइट्स भी होती है, फैमिली में भी होती है ना, अपने दोस्तों के साथ भी होती है, जहाँ काम करते हैं उनके साथ भी होती है। हम लेकिन जब भी हमारे कभी झगड़ा होता है तो हम उसको रिजॉल्व तो करना चाहते हैं, सॉरी भी कहते हैं, प्रॉमिस भी करते हैं, पैचअप भी करते हैं, प्रॉमिस भी करते हैं कि हम भविष्य में नहीं लड़ेंगे, है ना। परिवारों में देखते जाइए तो क्या होता है, आपस में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है, भाई बहन में झगड़ा होता है, आपका अपने कई बार अपने माता पिता के साथ भी कुछ कहा सुनी होती है, सब कुछ होता है, हम और आर्गुमेंट्स भी होते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं और सभी चाहते हैं कि उस आर्गुमेंट्स को कोई कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो किसी इंस्टेंट पे हो जाते हैं, तो सब उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। हाँ, हम लोग अपनी अगर गलती होती है तो बहुत बार गलती भी मान लेते हैं ना, नहीं भी मानते हैं लेकिन बहुत बार गलती मान लेते हैं, पैचअप करते हैं, ये भी प्रॉमिस करते हैं कि भाई नहीं, अब आज झगड़ा हो गया, अब इसके बाद झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन क्या होता है ये आप लोग खुद अच्छे से बता सकते हैं, है ना। होता क्या है, हम ये चाहते हैं कि दूसरा इम्प्रूव करे और दूसरा चाहता है कि हम इम्प्रूव करें, हम गलत बात ना कहें, लेकिन वो दूसरा मतलब हम चाहते हैं कि आप गलत बात ना कहें और वो चाहता है कि हम गलत बात ना कहें, लेकिन होता क्या है, क्या हम कोई इम्प्रूव कर पाता है? तो क्या होता है, आर इंसिडेंसेस ऑफ रिएक्शन, नॉट स्पीकिंग टू द अदर्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स, डाइवोर्स, ये सब बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? क्या हो रहा है? आप अपनी क्लोज रिलेशनशिप्स में देखिए, अपने परिवार में देखिए, अपने दोस्तों में देखिए, अपने ऑफिस में देखिए, सोसाइटी में देखिए, क्या हो रहा है। जहाँ कुछ भी बात होती है आजकल हम लोग तुरंत रिस्पॉन्स के मोड में नहीं, रिएक्शन के मोड में आ जाते हैं, है ना। गुस्सा हो जाएंगे, दूसरे से बात नहीं करेंगे या लड़ाई झगड़े पर उतर आएंगे, है ना, बहस होगी। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे परिवारों में डाइवोर्स की घटना। और अगर थोड़ा सा इसको देखिए तो सोसाइटी में इस समय क्या हो रहा है, और एक थोड़ा सा और देखने जाइए, पढ़े लिखे लोग क्या हो रहा है,
डाइवोर्स, डिबेट्स ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्यों हो रहा है, फैमिली में, परिवार में, दोस्तों के साथ में, वर्क प्लेस में, कहीं भी आप देखने जाइए, है ना, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब को कहीं ना कहीं विचार करके देखने की तो जरूरत है। हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज छूट रही है, कि जो चीजें इंप्रूव होनी चाहिए वो इंप्रूव होने की जगह और दिन पर दिन और खराबी होती जा रही है। समाज में स्थिति देखिए आप, तो सामाजिक स्थितियां दिन पर दिन और बिगड़ ही रही है, क्यों हो रहा है ऐसा। Sorry. In spite of our acceptance for relationship, why is it happening? संबंधों के लिए हम सभी में नेचुरल एक्सेप्टेंस तो है ही है, हम सभी संबंधों के बिना तो कोई भी नहीं रहना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी क्यों हो रहा है, तो इसको विचार करके देखने की जरूरत तो है ही है। हम अपने संबंधों को एक बार चेक करके देखते हैं, अपने आप में अपने आप में ही जांच करके देखा जा सकता है, क्या हमारी चाहना संबंध पूर्वक जीने की है या हमारी चाहना विरोध पूर्वक जीने की है, या हमने ये मान रखा है कि जीना तो विरोध पूर्वक ही संभव है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और क्या हम वैसा जीते हुए सुखी होते हैं। इस पे आप सब लोग विचार करके देखिए, क्या आपके दिमाग में क्या आता है, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस बारे में। ये तो मेरी समझ से हम सभी यही चाहते हैं कि जीना तो हम सभी संबंध पूर्वक चाहते हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे समाज में हो, कहीं भी हो, जीना तो हम संबंध पूर्वक जी ही चाहते हैं ना। क्या कभी ऐसा लगता है कि नहीं, हम संबंध पूर्वक नहीं जीना चाहते, हम विरोध पूर्वक जीना चाहते हैं। इसको विचार करके देखिए, आपकी आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, आपकी सहज स्वीकृति किसके साथ है, संबंध पूर्वक जीने की है या विरोध पूर्वक जीने की है ना। और यहीं पे थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंशिएट करिए कि आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है और आपका मानना क्या, क्योंकि कई बार क्या ऐसा हमने पढ़ा भी है और माना भी है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो एक बहुत समय से चला आ रहा है। तो क्या हमने इसको हम मान करके हमने ये मान ही लिया है कि जीना तो विरोध पूर्वक ही संभव है, संबंध पूर्वक हम नहीं जी सकते हैं, क्या ऐसा है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ऐसा कहते हैं कि हाँ, जीना तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है या स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है ही, तो क्या ऐसा जीते हुए हम सुखी हो पाते हैं, इस पे भी विचार करिए। अगर हमने ये मान के रखा है कि नहीं, जीना तो स्ट्रगल है ही है, सर्वाइवल तो फिटेस्ट का ही है, तो क्या उससे आप सुखी हो पाएंगे, क्या ये सही है, इसको विचार करने की जरूरत है। इस पे विचार करके देखिए। हमारा अभी प्रेजेंट पर्सपेक्टिव क्या है और हम क्या प्रमोट करना चाहते हैं अपने घर में, फैमिली में, स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटी में, और क्या ये नेचुरली एक्सेप्टेबल व्यू है। यही मैं कह रही थी कि क्या हम विरोध पूर्वक ही जीना संभव है, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, स्कूलों में क्या शिक्षा दी जा रही है, भाई जो फर्स्ट आएगा वही सबसे अच्छा है, उस फर्स्ट आने के लिए क्या क्या भागा दौड़ी मची रहती है बच्चों में, है ना। जो हम एक को अलग कर देते हैं कि वो फर्स्ट आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट हो गया, वो बहुत अच्छा हो गया, तो बाकियों में उसके प्रति क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इसको सोच करके देखिए कि हम किसको प्रमोट कर रहे हैं। कहीं हम इसको प्रमोट किया जा रहा है कि संबंध पूर्वक जीना ही सही जीना है, या हम हमेशा यही प्रमोट करते चले आ रहे हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, अगर विरोध हमें हर जगह स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो स्ट्रगल करना है, विरोध पूर्वक ही हम आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये नेचुरली एक्सेप्टेबल व्यू है, विरोध पूर्वक जीना। आप विरोध पूर्वक जी करके आपको अंदर कैसा महसूस होता है, आप कभी सुखी हो पाते हैं, आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस है विरोध पूर्वक जीने के लिए। For fulfillment in relationship, it is necessary to have right understanding about relationship. मतलब right understanding is also necessary for human being. तो जब हम संबंधों की बात करते हैं, संबंधों को समझने की बात करते हैं, तो फिर यही बात आती है कि right understanding. With right understanding, we have clarity about relationship with human being.
we are able to fulfill relationship. We also have clarity about how much physical facility we need. तो ये जो हम कह रहे हैं कि हमारा जीना संबंधों के साथ जीना है, हमें फिजिकल फैसिलिटी की जरूरत है, सुविधा की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हमको संबंध की जरूरत है। तो इस सब बातों को हमें समझने के लिए एक राइट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, सही समझ। तो उस सही समझ से ही हमें ये क्लियर होता है कि हमें कितनी सुविधा चाहिए, कितनी फिजिकल फैसिलिटी हमको चाहिए हमारे शरीर के लिए, या हमारे लिए कितनी फिजिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ जब हम अपने परिवार में रहने जाते हैं, हम समाज में रहने जाते हैं, तो हमारा उसके साथ दूसरे मानव के साथ, दूसरे परिवार के साथ हमारे क्या संबंध हो और हम उनको फुलफिल कर पाए। तो उसके लिए एक हमें राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उस राइट अंडरस्टैंडिंग से ही हम रिलेशनशिप को फुलफिल करने की और फिजिकल फैसिलिटी के बारे में हम जोड़ पाते हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ हमारी सेल्फ में होनी चाहिए, है ना। जब हमारे अपने साथ में हमारी अपने आप में सही समझ होगी तो हम रिलेशनशिप दूसरे मानव के साथ में रिलेशनशिप को भी समझ पाएंगे, और बाकी हमें प्रकृति से जो सुविधा की जरूरत है, फिजिकल फैसिलिटी की जरूरत है, उसको भी समझ पाएंगे। तो अगर हम फिजिकल फैसिलिटी को देखते जाएं तो फिर से साथ में लिखा हुआ है, फॉर एनिमल्स इट इज नेसेसरी एंड लार्जली एडिक्वेट। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के लिए फिजिकल फैसिलिटी जरूरी तो है, लेकिन वो काफी नहीं है। उसके साथ साथ हमें संबंध भी चाहिए, है ना। संबंध और सुविधा के साथ साथ अब एक चीज और आ गई है, राइट अंडरस्टैंडिंग। तो ये देखिए, आप सभी लोग इसको देखिए कि क्या ये तीनों चाहिए, या इसमें से कुछ ऐसा है जिसके बिना भी हम रह सकते हैं, और एक चीज और, या कुछ और भी चाहिए। तो इसको देखिए, इसमें बताइए आप लोग की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है। क्या ये तीनों कॉमन है, या इसके सिवा हमें कुछ और भी चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? ये तीनों चाहिए, या इनमें से हम किसी एक को छोड़ सकते हैं, कोई चीज ज्यादा है, या इन तीनों के सिवा भी हमें कुछ चाहिए ना। रिलेशनशिप, क्या हम सही समझ के बिना हम जी सकते हैं, हाँ, सुखी हो सकते हैं, या संबंध के बिना हमारा निर्वाह हो सकता है ना। अगर समझ है और संबंध है तो क्या सुविधा के बिना हम रह सकते हैं, है ना। क्या हमें खाना पीना कपड़े नहीं चाहिए? तो क्या ये तीनों चाहिए, इसमें सहमति है? और कुछ और चाहिए क्या? क्या किसी के मन में कोई ऐसी चीज आई है? फिर उसके बाद, आर वी वर्किंग ऑन ऑल थ्री? क्या हम सही समझ, संबंध और सुविधा, इन सब के लिए काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप लोग अपने आप में विचार करके देखिए, है ना, हम कहाँ पर किसके लिए काम कर रहे हैं, है ना। पहले तो ये देखिए, अगर तीनों चाहिए तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, हम क्या कर रहे हैं? वर्किंग ऑन द हाई प्रायोरिटी, हाँ, और कोशिश कर रहे हैं कि वो लोअर प्रायोरिटी को भी पूरा कर दे। अगर हम इसमें क्या, इसकी क्या प्रायोरिटी होगी, इसमें बताइए। सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना होगा? और ये तो एक बेसिक चीज है कि जो हाई प्रायोरिटी वाली चीज है, अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे तो जो लोअर प्रायोरिटी वाली चीजें हैं उसको हम आसानी से डील कर पाएंगे, है ना। तो क्या प्रायोरिटी, क्या समझ में आती है? मुख्य, सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज है, इसको देखने जाइए तो समझ में आएगा। राइट अंडरस्टैंडिंग जब हमारे अंदर होगी तभी हम रिलेशनशिप और तभी हम सुविधा के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। लेकिन अभी हमारा काम किस पे चल रहा है? अभी जितना भी हम वर्क कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? तो देखते जाएं तो हम सभी लोग मोस्टली फिजिकल फैसिलिटी के ऊपर ही लगे हुए हैं। संबंधों पर शायद कहीं कोई कुछ काम कर ले रहा हो, लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग पे कितना काम हो रहा है, इसको देखिए, सोचिए। Participants can unmute themselves for an interactive session with ma'am. हाँ, अगर कोई इसमें कोई कुछ कहना चाहे।
तो जब हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो अगर देखते जाइए तो पहली प्रायोरिटी पे राइट अंडरस्टैंडिंग आती है, सबसे महत्वपूर्ण समझ, है ना। जब हमारे अंदर सही समझ होगी, समझ अगर सही समझ नहीं है तो निर्वाह करना बहुत मुश्किल होगा, ये सभी जानते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप, परिवार में अगर जीना है तो संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, अगर संबंध नहीं होंगे तो भी निर्वाह नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पर फिजिकल फैसिलिटी आती है ना। फिजिकल फैसिलिटी के बिना तो आप थोड़ा बहुत कुछ निर्वाह कर भी सकते हैं, खाने के बिना आप थोड़ा समय रह भी सकते हैं, लेकिन संबंधों के निर्वाह के बिना और राइट अंडरस्टैंडिंग के बिना, तो ये इसका जो प्रायोरिटी होगी, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, संबंध और फिर फिजिकल फैसिलिटी। तो रिलेशनशिप को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? रिलेशनशिप दूसरे मानव के साथ होती है, हमारे परिवार में होती है, तो जो भी दूसरा है वो हमारे जैसा ही है, वो भी एक दूसरा मानव है, तो उसके साथ संबंध है। तो वो संबंध कब सही है? इसके संबंध को बनाए रखने के लिए बहुत सारे भाव हैं, 9 भाव हैं, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इसके और कई हैं, उसको हम लोग जब पूरी वर्कशॉप करते हैं तो उसमें एक एक भाव डिस्कस होता है। लेकिन हम संबंधों को तब कह पाते हैं कि पूर्ण हो पा रहे हैं जब हम जिसके साथ संबंध बनाने जाते हैं तो हमें दोनों में म्यूचुअल हैप्पीनेस, जब हम अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर किसी चीज को वेरीफाई करने जाते हैं, तो संबंधों को अगर हमें वेरीफाई करना है तो जिसके भी साथ हम व्यवहार करने जा रहे हैं वो म्यूचुअल हैप्पीनेस होना चाहिए, उभय सुख। अगर कोई चीज हमें सुख दे रही है और आपको भी सुख दे रही है तो वो संबंधों में वो व्यवहार हमारा सही, तो इसलिए इसको म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल सुख कहते हैं। इसी तरह फिजिकल फैसिलिटी, सुविधा जब हम जुटाने जाते हैं तो उस सुविधा जुटाने के लिए हमें प्रकृति के साथ काम करना पड़ता है। तो उस प्रकृति के साथ जब हम काम करने जाते हैं तो कोई भी हमारा कार्य जो है वो सही है, ठीक है या नहीं है, उसको के लिए हमारा जो एक क्राइटेरिया है वो है म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, उभय समृद्धि। तो जब हम कार्य और व्यवहार में जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहार हम दूसरे मानव के साथ करते हैं, तो उस दूसरे मानव के साथ हमारा व्यवहार म्यूचुअल हैप्पीनेस देने वाला होना चाहिए, उभय सुख देने वाला होना चाहिए। तो अगर कोई व्यवहार ऐसा है तो वो व्यवहार हमारा सही है। इसी तरह से जब हम शेष प्रकृति के साथ काम करने जाते हैं तो प्रकृति के साथ काम करने पर अगर उभय समृद्धि हो रही है, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी हो रही है, तो फिर वो हमारी स्किल, वो हमारी टेक्नोलॉजी, वो हमारा काम सही है, उसके लिए हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है। अब अगर हम प्रायोरिटी फिजिकल फैसिलिटी को देते हैं, है ना, हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप की बात हम नहीं करते हैं, अगर हमने कहा कि प्रायोरिटी हमारी फिजिकल फैसिलिटी है, सुविधा है, रेस्ट ऑफ द नेचर है, तो जब हमारी प्रायोरिटी फिजिकल फैसिलिटी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? नेचुरल है, हम उसका संग्रह करने का प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि वो कभी हमारे लिए पूर्ण होगी नहीं, हमारे अंदर समझ ही नहीं है, तो हमें इसका अंदाज ही नहीं है कि हमें कितनी सुविधा चाहिए। तो जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारी आवश्यकता कितनी है, तो वो क्या आवश्यकता कभी हमारी पूरी हो सकती है? कभी नहीं पूरी होगी, है ना। जो कोई बर्तन है, अगर उसमें नीचे तली ही नहीं है तो आप उसको कितना भी भरते जाइए, क्या कभी आप उसको भर पाएंगे? कभी नहीं भर पाएंगे। तो उसमें तली तो होनी ही चाहिए, मतलब आपको ये तो पता होना ही चाहिए ना कि आपको सुविधा की आवश्यकता है, इस पे कोई संदेह नहीं है, सभी को आवश्यकता है, लेकिन वो कितनी आवश्यकता है इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता हमें राइट अंडरस्टैंडिंग से ही चलेगा। अगर हमने राइट अंडरस्टैंडिंग को हटा दिया, हमने फिजिकल फैसिलिटी को ही महत्वपूर्ण मान रखा है जो अभी हम कर रहे हैं, तो फिजिकल फैसिलिटी महत्वपूर्ण है और हमें ये पता है नहीं कि हमें उसकी कितनी आवश्यकता है, तो क्या होगा? हम उसका संग्रह करना चाहेंगे। जब हमारे अंदर समृद्धि का भाव नहीं है तो हम उसको लाना चाहेंगे, और लाएंगे कैसे? तो हम दूसरे को एक्सप्लॉइट करेंगे, दूसरे को हम उसके हक से डिप्राइव करेंगे, तभी हम उसको सुविधा का संग्रह करने में जुड़े रहते हैं। रिलेशनशिप, उसका संबंध नहीं है तो वहां पर हम खुद दुखी होंगे, और जब हम खुद दुखी होंगे तो दूसरे को भी हम दुखी करेंगे। अब अगर हम राइट अंडरस्टैंडिंग पर आए, है ना, अगर हम इन तीनों चीजों के साथ में रह रहे हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी, तो इसको हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, है ना। और ये जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो उसी के आधार पर फुलफिल हो सकती है, हम सुखी हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, जब इन तीनों का हमारी जिंदगी में, तीनों पे हम ध्यान दें, तीनों चीजें हमारी जिंदगी में हो। सबसे पहले तो राइट अंडरस्टैंडिंग हो, जब हमारे अंदर समझ होगी,
तभी हम संबंधों की उपयोगिता समझ पाएंगे और तभी हम ये तय कर पाएंगे कि हमें फिजिकल फैसिलिटी की कितनी आवश्यकता है। जब तक सही समझ नहीं होगी हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि हमें कितनी सुविधा चाहिए और हम भागते रहेंगे। कभी भी हम अपने आप को सुखी, कभी भी समृद्ध तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि समृद्धि का मतलब क्या है, प्रॉस्पेरिटी से क्या मतलब है। अगर हम प्रॉस्पेरिटी कह रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारी आवश्यकता से अधिक होना। तभी हम अपने आप को समृद्ध कहते हैं जब हम ये एहसास कर पाते हैं कि हाँ, हमारी जितनी आवश्यकता है उससे हमारे पास ज्यादा है। और जब हमारे अंदर समृद्धि का भाव आता है तभी हम दूसरे के लिए कुछ कर पाते हैं। जब तक हमारे अंदर अपने अंदर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का भाव नहीं आता है तो हम किसमें लगे रहते हैं, हम खुद ही संग्रह करने में लगे रहते हैं कि भाई हमारी आवश्यकता तो पूरी हो जाए ना। ये भी एक सहज सहज स्वभाव है हमारा मानव का। अगर हमें ये लगता है कि हमारे लिए हमारी जरूरतें पूरी है तो हम खुद आगे बढ़ करके आवश्यकता से अधिक को दूसरों में शेयर करना चाहते हैं। आप देखने जाइए तो हम उसको शेयर करना चाहते हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग जब होगी तो हमें अपनी आवश्यकता की सही समझ होगी। उस सही समझ के आधार पर हम प्रकृति के साथ काम करके अपने लिए उत्पादन कर पाएंगे। और जब हमारी अपनी आवश्यकता पूर्ण होगी तो हम रिलेशनशिप में भी जा पाएंगे और समृद्धि के भाव के साथ में दूसरे को भी हम प्रॉस्पेरस कर पाएंगे, दूसरे के लिए भी हम कुछ कर पाएंगे। तो उभय सुख और उभय समृद्धि की बात तभी आएगी। अब मानव चेतना और पशु चेतना में देखें तो पशु चेतना मोस्टली फिजिकल फैसिलिटी तक ही रहता है। तो एनिमल कॉन्शियसनेस, जीव चेतना फिजिकल फैसिलिटी तक ही। अगर हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप के बारे में नहीं है तो हम यही कहेंगे कि हमारी जो है वो मानव होते हुए भी हम जीव एनिमल कॉन्शियसनेस के साथ ही रहें ना। अगर हमारे अंदर संबंधों की समझ नहीं है, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सही समझ नहीं है तो हम जीव चेतना में ही रह रहे हैं। और हम दूसरे को जब हम कार्य व्यवहार करने जाते हैं अपनी सुविधा के लिए तो हम समृद्ध प्रकृति को और बाकी को हम उसको भी डिप्राइव करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। और जब हम खुद खुश नहीं है, खुद सुखी नहीं है तो हम, क्योंकि रिलेशनशिप की समझ नहीं है, संबंधों में हम जी नहीं पाते हैं तो हम दूसरे को भी अनहैप्पी और दुखी ही करते हैं। तो इसको कैसे किया जाए? If our living is only for physical facility, then we are living with animal consciousness. Animals live only for physical facility or can be fulfilled by that. But human being cannot be fulfilled on the basis of physical facility alone. तो खाली अगर फिजिकल फैसिलिटी मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। फिजिकल फैसिलिटी हमारे लिए जरूरी है लेकिन फिजिकल फैसिलिटी ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें उसके बाद भी कुछ और चाहिए, है ना। ये हम सभी अपने आप में देख ही सकते हैं। वो कुछ और क्या चाहिए, वो संबंध ना। लेकिन ये समझना कि हमें फिजिकल फैसिलिटी की एक रिक्वायरमेंट है, उसकी एक आवश्यकता है, वो आवश्यकता लिमिटेड है, कितनी है, इसको समझना। दूसरे हमारे लिए संबंध भी उतने ही आवश्यक है, इसको समझना। तो ये सारी चीजें राइट अंडरस्टैंडिंग से ही हमें आ पाएगी कि हमें सुविधा ही नहीं चाहिए, संबंध भी चाहिए। और इस सब को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण राइट अंडरस्टैंडिंग है। Animals living with animal consciousness, they are in harmony, this is fine. Human beings living with human consciousness, they are in harmony, this is fine. Human consciousness क्या हुआ? Human consciousness का मतलब right understanding, relationship and physical facility, all the three. लेकिन अगर human being living with animal consciousness, they are in disharmony, this is the problem. अगर हम देखने जाएं, है ना, अपने आप को देखें, अपने परिवार को देखें, अपने आसपास देखें तो अभी क्या हो रहा है? क्या हम तीनों स्तर पर जी पा रहे हैं या हम खाली एक फिजिकल फैसिलिटी में ही लगे हुए हैं ना। और जब हम खाली एक फिजिकल फैसिलिटी में लगे रहेंगे तो हमें संबंधों को समझ नहीं पाएंगे, उनको कैसे निर्वाह करना है वो भी नहीं समझ पाएंगे। घर में दुख होगा, हम खुद दुखी होंगे और जब हम खुद दुखी होंगे तो हम दूसरे को क्या देंगे? जो हमारे पास है वही हम दूसरे को देंगे। हम अगर दुखी हैं तो हम दूसरे को भी दुखी करेंगे। अगर हमें सुख की अनुभूति है तो हम दूसरे को सुखी करने पाएंगे। और अगर हम हार्मोनी में नहीं है तो हम सुखी हो नहीं सकते हैं। तो ये अभी हमारे समाज की, मतलब अभी हम लोगों की एक यही प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम। इसको हम लोग कहते हैं, दो तरह के लोग अभी हमको दिखाई देते हैं, लैकिंग फिजिकल फैसिलिटी, अनहैप्पी, डिप्राइव्ड।
है ना। अगर आप सोसाइटी में देखने जाइए, अपने आसपास देखिए, तो दो तरह के लोग दिखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सुविधा नहीं है, तो सुविधा विहीन है तो हम कहेंगे हाँ वो सुविधा विहीन है, तो वो दुखी भी है और दरिद्र भी है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में। दूसरी तरफ देखने जाइए, जैसे कि अभी जितने हम लोग, मेरे ख्याल से जितने हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो हमें लगता है सुविधा विहीन तो कोई भी नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? हैविंग फिजिकल फैसिलिटी, अनहैप्पी, डिप्राइव्ड। सुविधा संपन्न, दुखी, दरिद्र। और हम होना क्या चाहते हैं? सुविधा संपन्न, सुखी, समृद्ध। ये चाहते हैं, ये सब लोग होना चाहते हैं ना। सब लोग अपने अपने स्तर पर विचार करके देखिए, अपने स्तर पर वेरीफाई करके देखिए, अपनी स्वीकृति के आधार पर। सुविधा भी चाहिए, हम सुखी भी होना चाहते हैं और समृद्ध भी होना चाहते हैं। लेकिन अभी हम रह कहाँ रहे हैं? हमें लगता है हम कहाँ हैं? सुविधा संपन्न तो है, लेकिन क्या हमारे अंदर समृद्धि का भाव है? क्या सुख का भाव है? अगर नहीं है तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम खुद डिसाइड कर सकते हैं इस बात को। हम कहाँ हैं, 1, 2 और 3, और हम कहाँ होना चाहते हैं, है ना। इसको हम सभी जांच करके अपने स्तर पर देख ही सकते हैं। अगर हम रिसोर्सेस की बात करें, सुविधा के लिए बात करें, तो ये डेटा है, और ये डेटा इस वेबसाइट से लिया गया है, इसका यहाँ पे रेफरेंस भी दिया गया है। तो इस डेटा को अगर आप देखने जाइए, तो जो वर्ल्ड में फूड प्रोड्यूस हो रहा है, 4.2 बिलियन टन्स ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड, more than 1 billion tons of food is lost or wasted every year. ये UN की रिपोर्ट है, 11 मई 2011 की रिपोर्ट है ये। About a third of all the food produced for human consumption each year, or roughly 1.3 billion tons, is lost or wasted, according to a new study commissioned by the United Nations Food and Agriculture Organization, FAO. तो अगर हम ये कहते हैं कि सुविधा नहीं है, तो उसको अगर आप पूरे उस पर देखिए कि खाने की कमी है, या अनाज की कमी है, या किसी और चीज की कमी है, तो ऐसा नहीं है। जो डेटा है आपके पास, ग्लोबल फूड प्रोडक्शन जो है वो रिक्वायरमेंट से 6 गुना अधिक है ना। और जो फूड वेस्टेज है वो 1/3 है प्रोडक्शन की, है ना। तो अगर आप देखते जाइए तो 6 गुना ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रहा है, और 1/3 हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जितनी हमें आवश्यकता है उससे 2 गुना तो हम वेस्ट कर रहे हैं। और जो इतनी वेस्टेज है वो, जैसा लिखा हुआ है, 1300 करोड़ पीपल पर ईयर को उससे हम फीड कर सकते हैं। तो सुविधा का अभाव नहीं है, नेचर में सुविधा का अभाव नहीं है। ये सुविधा का अभाव क्यों है, इसको भी फिर देखने की जरूरत है, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो रहा है, अन्न का उत्पादन तो हो रहा है। तो क्या हमने राइट यूटिलाइजेशन को समझा है? क्या ये जो अगर हम कहते हैं कि सुविधा का अभाव है लोगों में, तो ये प्रोडक्शन का सवाल है कि प्रोडक्शन पूरा नहीं हो रहा है, या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, या रिलेशनशिप की वजह से है, या राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी है? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन, या ये शिक्षा की बात है। इसको देखिए, इस पर विचार करिए, क्यों ऐसा है कि हमारे पास 6 गुना अधिक अन्न उत्पादन है, लेकिन उसके बाद भी, है ना, उसके बाद भी अभी भी ये डेटा आता है कि कितने लोग भूखे रहे। ये ऐसा क्यों है? क्या कारण है इसका, क्यों ये हो रहा है? हाँ, तो जो हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की अभी बात शुरू में हमने कही थी कि शिक्षा के थ्रू हॉलिस्टिक डेवलपमेंट या समग्र विकास की बात हम करते हैं, तो अभी जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो डेवलपमेंट किधर हो रहा है, इस पे विचार करके देखिए। इस डेवलपमेंट जस्ट इन इंक्रीजिंग फिजिकल फैसिलिटी, और डेवलपमेंट इज इंश्योरिंग ऑफ ऑल 3? तो अगर आप विचार करने जाएं, हम लोग विचार करने जाएं, तो अभी हम शिक्षा में क्या दे रहे हैं? शिक्षा में हम मुख्यतः किसकी बात कर रहे हैं? खाली हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, या सुविधा की ही बात कर रहे हैं?
संबंधों और समझ पे हम कितना काम कर रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है। और हम कहाँ जी रहे हैं, तो मुख्यतः तो अभी अगर आप देखें तो हम ये फिजिकल फैसिलिटी पर जी रहे हैं, है ना। फिजिकल फैसिलिटी की बात हो रही है, संबंध और राइट अंडरस्टैंडिंग ये तो पूरी तरह से ना सही, लेकिन मुख्यतः तो मिसिंग ही है। अनहैप्पीनेस, तो इसकी वजह से अनहैप्पीनेस है और हम दूसरे को अनहैप्पी कर रहे हैं, और क्योंकि फिजिकल फैसिलिटी पर हम ले रहे हैं, हमें समृद्ध का भाव नहीं है, तो हम दूसरे को भी एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, उसको भी दरिद्र बना रहे हैं। तो जो शिक्षा है, जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, वो यही है कि हमें इस एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ले जाना। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रोग्रेस है, संक्रमण है, विकास है। इसको अगर हम विकास मानेंगे और इस तरफ हम जाएंगे, तब हम सही मायने में कह पाएंगे। जब हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, हमारे पास हमें रिलेशनशिप की समझ आएगी, तो जब हम रिलेशनशिप को समझेंगे, हम हार्मोनी में रहेंगे, तो हम सुखी हो पाएंगे। और इस सब के लिए सबसे मुख्य है राइट अंडरस्टैंडिंग का स्वयं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डेवलप होगी? शिक्षा और संस्कार। अभी हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो फिजिकल फैसिलिटी के बारे में दे रहे हैं, संस्कार की बात, राइट अंडरस्टैंडिंग की बात तो कहीं छुपी हुई। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानव चेतना में ले जाना, यही हमें शिक्षा में इस चीज को लेकर के आने की बहुत बहुत जरूरत है। और AICTE ने इसको समझा है और इसको सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए तो अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन खाली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अनिवार्य करने से काम नहीं चलेगा, बाकी जगहों पर भी किया जाना है, लेकिन इंजीनियरिंग में पहले इसका आना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंजीनियर ही समाज के निर्माता कहे जाते हैं। तो जब अगर हम लोग इस बात को, इंजीनियर्स इस बात को समझेंगे, तभी इसको हम समाज में इसको और ज्यादा एक्सेप्ट करा पाएंगे। निर्माता हैं हम समाज के, तो इस समझ को हमारे अंदर आने की सबसे पहले जरूरत है। और उसमें भी टीचर्स, है ना, जितने भी हम लोग फैकल्टी हैं, हमारे अंदर जब ये समझ होगी, तभी हम कहीं अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को आगे दे पाएंगे। इसको देखिए, क्या हम ये दे पा रहे हैं? क्या कहीं हम बच्चों में राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमारा कोई प्रयास रहता है? और अगर रहता है तो किस हद तक, कितनी इसकी आवश्यकता है और हम उसको कितना पूरा कर पा रहे हैं? इसको सोचिए, इस पर भी विचार करिए। आर वी मेकिंग एफर्ट फॉर इट? पहले तो, इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन डिजायरेबल? क्या इसकी जरूरत है? तो मुझे लगता है कि जो समाज में स्थितियां हैं, जो हम रोज अखबार के हेडलाइंस देखते हैं, तो उसके बाद ये तो सबको समझ में आ गया है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के बिना तो आगे चल नहीं सकता है। हम जिस स्थिति में आ गए हैं कि आज हमारे पास हवा पानी भी नहीं बची है, अब से 10 साल 20 साल बाद हम कहाँ जाएंगे ना? तो हम इसके लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? डू वी नीड टू मेक एफर्ट फॉर इट? ये बताइए, या आप सब लोग बताइए, डू वी नीड टू मेक एफर्ट फॉर इट? We will explore into the effort required for transformation for holistic development. ठीक है, आगे के हम इसको और डिस्कस करते हैं। तो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, समग्र विकास, वो है पशु चेतना से मानव चेतना में विकास होना या ट्रांसफॉर्मेशन होना। अभी तो मुख्यतः हम में से अधिकतर लोग, हम सभी लोग मानव चेतना में तो नहीं जी रहे। तो मानव चेतना में कैसे हम लेकर के आए लोगों को, उसको लाने के लिए क्या करना है? The role of education संस्कार is to enable this transformation by way of ensuring the development of the competence to live with human consciousness and definite human conduct. इसके लिए क्या इंश्योर करना पड़ेगा? Right understanding in every child, the capacity to live in relationship with the other human being. हम जी तो रहे हैं दूसरे के साथ में, लेकिन क्या हम संबंधों के आधार पर जी पा रहे हैं? The capacity to identify the need of physical facility and the skills and practice for sustainable production of more than what is required, leading to the feeling of prosperity. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो जो हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, संस्कार की बात कर रहे हैं, रोल ऑफ एजुकेशन संस्कार, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करना है पशु चेतना से मानव चेतना में। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें सभी में राइट अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग डेवलप करनी पड़ेगी, राइट अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करना पड़ेगा सभी बच्चे में। उसके बाद रिलेशनशिप का भाव, रिलेशनशिप में रह पाना दूसरे मानव के साथ में, इसकी कैपेसिटी, इसकी कॉम्पिटेंस सब में डेवलप करने की जरूरत है।
वो कॉम्पिटेंस की बात और 7 दिन के शिविर में होती है, क्या क्या चाहिए आपको। तो एक वो कैपेसिटी कि दूसरे के साथ हम रिलेशनशिप में रह पाए, और फिर ये हमारे अंदर ये कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि हमें कितनी फिजिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है, और जब हमें इस आवश्यकता की पहचान हो जाएगी तो हमारे अंदर ये स्किल होनी चाहिए, ये हमारी ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए कि हम अपनी आवश्यकता को प्रोडक्शन कर सके, बल्कि आवश्यकता से अधिक का प्रोडक्शन कर सके, जिससे कि जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन होगा तो हमारे अंदर समृद्धि का भाव आए ना। इससे तो आप सभी लोग सहमत होंगे, समृद्धि का भाव तभी आता है जब हमको यह एहसास होता है कि हाँ, जितनी हमारी आवश्यकता है हमारे पास उससे ज्यादा है। तो जब हमारे अंदर ये भाव आएगा तो हम दूसरे को एक्सप्लॉइट करना, उसको डिप्राइव करना, इन सब चीजों से हम पीछे हटेंगे। जब हम खुद समृद्ध होंगे तो हमारा प्रयास होगा कि हम दूसरे को भी समृद्ध करें। जब हम रिलेशनशिप में दूसरे के साथ रह पाएंगे, वो हम तब रह पाएंगे जब हम स्वयं में सुखी होंगे। जब हम स्वयं में सुखी होंगे, हम दूसरे को भी सुखी करने की तरफ अपना प्रयास कर पाएंगे। अभी क्या स्थिति है? क्या हर बच्चे में राइट अंडरस्टैंडिंग है? द कैपेसिटी टू लिव इन रिलेशनशिप विद द अदर ह्यूमन बीइंग, है ना? द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, द स्किल्स एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो अभी तो हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग की बात कहें तो आप ही बताएंगे क्या है स्थिति है ना? रिलेशनशिप में दूसरे के साथ रहना, खुद सुखी रहना और दूसरे को सुखी करना, वो हम कितना कर पा रहे हैं ना? कितना, क्या समाज में स्थिति है, अभी हम कहाँ पर हैं, और क्या अपनी फिजिकल फैसिलिटी की आवश्यकता को समझ पा रहे हैं? अभी तो क्या है, अगर आप देखने जाएं तो क्या हम में जितने लोग बैठे हैं, हमें ये पता है कि हमारे पास कितने जोड़ी पहनने के कपड़े हैं ना? जेंट्स है तो हमारे पास कितनी शर्ट पैंट है, या लेडीज है हमारे पास कितनी साड़ी है, कितने सूट्स हैं? क्या हमें गिनती है इसकी? और लेकिन हमें इसकी गिनती भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखते जाए तो हमें इसकी आवश्यकता लगातार रहती है, जो भी है वो कम है। ऐसा क्यों है? ना हमने अपनी आवश्यकता को समझा है, ना हम अपनी आवश्यकता से अधिक प्रोड्यूस करने के लिए हम प्रयास करते हैं। अभी तो सिर्फ ये है, एक्युमुलेट मोर एंड मोर, कंज्यूम मोर एंड मोर, बजाय इसके कि हम प्रोड्यूस मोर एंड मोर करें। कितने कपड़े हम खरीद लें, कितना हम ये ले लें, कितना हम वो ले लें, मतलब अभी तो इसी की आपाधापी बची रहती है। तो अगर हम थोड़ा सा और एनालाइज करें तो जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली वो लैक ऑफ एफर्ट्स है फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमने कितने प्रयास किए हैं? अगर आप अपनी शिक्षा को देखें, हम अपनी शिक्षा को देखें, तो हमने मानव को समझने के लिए कितने कोर्स पढ़े हैं? शायद कहीं कुछ ही क्लास 1, 2, 3 में कुछ उस पे मॉडल साइंस पे एक आध किताब होती थी, कोई एक आध सब्जेक्ट होता है। इसके सिवा हमने कहाँ पढ़ा है अपनी शिक्षा में मानव को समझना या मानव संबंधों को समझना? तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने आसपास जो हम देखते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है कि हम मानव जो है वो मानव चेतना के साथ नहीं जी रहे। हम मानव तो है, लेकिन मानव चेतना की जगह हमारा जीना जो है वो जीव चेतना या पशु चेतना में ही, और जबकि जो बेसिक एफर्ट चाहिए तो वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ ही ले जाना है हमें। मतलब मानव चेतना को इंश्योर करना है, पशु चेतना से मानव चेतना की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन करना है। वो कैसे किया जा सकता है? वो ह्यूमन एजुकेशन से हो सकता है। ह्यूमन एजुकेशन से हम मानव कॉन्शियसनेस लेकर के आएंगे, चेतना। जब मानव चेतना में हम जिएंगे तो हम ह्यूमन वैल्यूज कर पाएंगे और उससे ह्यूमन कंडक्ट आएगा, फिर हम ह्यूमन सोसाइटी की बात कर पाएंगे। Ultimately, it will result in a human tradition in which the human goal is fulfilled for all generation after generation. और human goal क्या है? जैसा हमने देखा था, to live with happiness and prosperity. Happiness जब हम दूसरों के साथ संबंधों में जी पाते हैं तब हमें happiness मिलती है, और prosperity तब होती है जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक का उत्पादन कर सकते हैं।
कर सकते हैं। तो जब हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जाएंगे तो हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज आएंगी और उससे हम अपने कंडक्ट को, अपने कैरेक्टर को डिफाइन कर पाएंगे और तभी एक हम सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो जब ह्यूमन एजुकेशन होगी, संस्कार होगा, तो हमें एक हार्मोनी को समझना पड़ेगा। वो हार्मोनी किस किस स्तर पर है? अगर आप अपने आप को देखें तो सबसे पहले तो आपकी अपने आप में हार्मोनी चाहिए। जो आप सोचते हैं और जो आप करते हैं, क्या उसमें संगीत है, क्या उसमें तारतम्य है? आप जैसा सोचते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं, वैसे ही आप कर पाते हैं? तो सबसे पहले तो आपके अपने अंदर, आपको अगर आप अपने आप को देखते जाए तो आपका जीना मैं के साथ में और आपके शरीर के साथ में है। तो सबसे पहले तो आपकी अपने और अपने शरीर के साथ में एक हार्मोनी चाहिए, होनी चाहिए, जिसको कहा गया है हार्मोनी इन ह्यूमन बीइंग। उसके बाद हार्मोनी इन फैमिली, परिवार के साथ में, फिर सोसाइटी के साथ में, और उसके बाद नेचर और एग्जिस्टेंस के साथ में। तो ये जो हार्मोनी है, इसी को वैल्यूज कहते हैं। जब हम इन वैल्यूज से गाइड होंगे तो जो हम शेष प्रकृति के साथ जब हम काम करने जाएंगे तो वो जो स्किल्स होंगी वो हमारी वैल्यूज से गाइडेड होंगी, और फिर वो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होंगी, वो ऐसी होंगी जिससे कि हम म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी इंश्योर कर पाएंगे। अभी तो क्या हम कर रहे हैं, नेचर से हम सिर्फ ले रहे हैं, है ना। नेचर को पूरी तरह से हमने एक्सप्लॉइट कर डाला है। जहां भी देखिए पेड़ों की क्या हालत हो गई है, पानी की क्या हालत हो गई है, मतलब जहां पर आदमी के कदम बढ़े हैं ना, जहां पे आदमी नहीं पहुंचा है वहां तो नेचर बहुत अच्छे से फल फूल रही है, जंगल भी है, जानवर भी है, पशु भी है, सब है। लेकिन जहां पर आदमी के पैर पड़ गए हैं वहां पर नेचर का क्या हाल हो गया है, ये इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना। तो जब हम वैल्यू से गाइड होकर रहेंगे तो हम एज एन इंडिविजुअल हार्मोनी में रह पाएंगे, परिवार में, सोसाइटी में, एग्जिस्टेंस में जब हम हार्मोनी में रहेंगे तो हम वैल्यूज के साथ में स्किल्स भी हमारी उसी तरह से डेवलप होंगी। और उसका मुख्य परखने का पॉइंट क्या है, जैसा पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम अपना व्यवहार करने जाते हैं दूसरे मनुष्य के साथ में, तो उसको जांचने परखने के लिए उभय सुख एक उसका पैरामीटर है। और अगर हम शेष प्रकृति के साथ कार्य करने जाते हैं सुविधा के संदर्भ में, तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, उभय समृद्धि उसका एक है कि जो हम करने जा रहे हैं हम भी समृद्ध हो, आप भी समृद्ध हो, हम भी, समय भी सुख मिले, आपको भी सुख मिले, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। यही हमारी शिक्षा और उसका संस्कार का उद्देश्य है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि किन प्रयासों से कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो हमें भी सुखी करेंगी, दूसरे को भी सुखी करेंगी, कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है, कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो हमें भी समृद्ध करेंगी और शेष प्रकृति को भी समृद्ध करेंगी। ऐसा नहीं है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है। अगर आप पुरातन में चले जाइए तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो टाइम टेस्टेड है, जिसमें आप नेचर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते ना, उसके साथ में उभय समृद्धि और उभय सुख का भाव आता है। तो अगर ह्यूमन बीइंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ रहेगा तो राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ होगी स्वयं में, है ना, स्वयं में समझ होनी चाहिए, दूसरे मानव के साथ में संबंध पूर्वक जीना होगा, और रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ में सुविधा के साथ में। तो जब हम हार्मोनी समझ लेते हैं तो हार्मोनी किस किस लेवल पर हमें समझनी है, हार्मोनी इन ह्यूमन बीइंग मतलब अपने स्वयं में समझ, फिर परिवार के साथ में हार्मोनी, सोसाइटी के साथ में, और नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ में। उसके बाद हमको हार्मोनी में रहना भी है एट ऑल लेवल्स ऑफ बीइंग, मतलब इंडिविजुअल स्वयं के साथ में, फैमिली के साथ में, सोसाइटी के साथ में, नेचर और एग्जिस्टेंस के साथ में। तो ये जो एजुकेशन है वो अंडरस्टैंडिंग देती है, राइट अंडरस्टैंडिंग, और जो संस्कार है उससे वो हमारे जीने में आता है। तो एजुकेशन, शिक्षा और संस्कार की जो हम बात करते हैं वो यही है। शिक्षा से हम राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, संस्कार से हमारे जीवन में, लिविंग में वो आता है, और फिर हम उभय सुख और उभय समृद्धि की सुनिश्चितता करते हैं। तो अगर हम ह्यूमन मानव चेतना के साथ रहते हैं तो हमारी अपनी सेल्फ में, हम अपने खुद के साथ में हम आराम में रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, हार्मनी में रहते हैं ना। जब हमें हार्मनी समझ में आ जाती है, फिर रिलेशनशिप में हम संबंधों के साथ रहते हैं, न्याय के साथ में रहते हैं दूसरे मानव के साथ में, और उसके साथ रहते हुए हम एक अपने परिवार से विश्व परिवार की तरफ
बढ़ते हैं। और फिर जब हम इन्हीं स्किल्स के साथ में नेचर के साथ में जाते हैं तो हमारा लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेशन होता है और हम फैमिली ऑर्डर से वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर की तरफ जाते हैं, है ना। पर ये सब तब हो सकता है, तभी हो सकता है जब हम म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर कर पाए और उससे अनडिवाइडेड सोसाइटी बने। उसके बाद हमारा जो फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन गोल है वो है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। पूरा विश्व में एक ह्यूमन ऑर्डर होना चाहिए। तो जो ये ह्यूमन वैल्यूज का जो कोर्स है ये एक प्रपोजल है अबाउट हार्मोनी एट वेरियस लेवल्स फॉर योर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, हार्मोनी इन ह्यूमन बीइंग, हार्मोनी इन फैमिली, हार्मोनी इन सोसाइटी, हार्मोनी इन नेचर एक्सिस्टेंस। और इसका जो प्रोसेस है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का है, सेल्फ वेरिफिकेशन का है। आपको स्वयं के अपने आधार पर इसको समझ के देखना है, अपने आधार पर इसको वेरीफाई कराना है। ये वेरीफाइएबल है, कैसे वेरीफाइबल है उसका एक वो है आपकी सहज स्वीकृति के आधार पर। अगर कार्य व्यवहार को हम देखने जाते हैं तो उभय सुख, कार्य को देखने चाहते हैं तो उभय समृद्धि हो, व्यवहार को हम देखने जाते हैं तो उभय सुख हो। तो हमें अचीव क्या करना है, इंडिविजुअल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग सभी मानव में डेवलप हो। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी। हम अपने आप के साथ कब कंफर्टेबल होते हैं, कब हार्मोनी में होते हैं, परिवार में कब होते हैं ना, और उसके बाद पूरे नेचर और एग्जिस्टेंस के साथ कब हम हार्मोनी में होते हैं। उस हार्मोनी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, सबसे पहले तो उसको समझना ही होगा क्या हार्मोनी है। तो जब हमारी वो समझ में आ जाएगी कि किसको हम हार्मोनी कहेंगे, उसके बाद उसको समझने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह से हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की बात, पहले हमको प्रॉस्पेरिटी समझना पड़ेगा। जब हम इसको समझ में आ जाएगा तो हम प्रकृति के साथ कार्य करके प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के साथ जी ही सकते हैं। उसी को लिविंग इन हार्मनी कहा गया है। और जब ये चीजें होंगी, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी हम कह पाएंगे कि एक सभ्य समाज, ह्यूमन सोसाइटी का निर्माण हुआ है और हम एक ह्यूमन सोसाइटी में रह रहे हैं। अभी क्या हम ये कह सकते हैं कि हम एक सभ्य समाज में, एक ह्यूमन सोसाइटी में रह रहे हैं? चलिए ये असाइनमेंट तो आज के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो हमारा है, जो कुछ भी कहा गया है, एक ये प्रपोजल है ना, हम जो कह रहे हैं प्रपोजल है कि क्या आप में राइट अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, आपको संबंध रिलेशनशिप की आवश्यकता है, आपको फिजिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है, इसकी क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए। इसको आप एज्यूम मत करिए कि मैडम ने कह दिया या एक कोर्स में लिखा हुआ है कि टॉप प्रायोरिटी राइट अंडरस्टैंडिंग को होनी चाहिए, सेकेंड रिलेशनशिप को, थर्ड आपको फिजिकल फैसिलिटी को। इसको आप अपने लेवल पर वेरीफाई करके देखिए, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर देखिए आपको क्या सही लगता है। जो सही लगे, और सही कैसे लगना है, आप ये प्रश्न उठाएंगे सही कैसे लग रहा है, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण है। अपने स्वयं के अधिकार पर, अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर देखिए। और अगर आप कार्य में करने जाते हैं तो आप कार्य करने जाते हैं तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, और व्यवहार में करने जाते हैं तो म्यूचुअल हैप्पीनेस के आधार पर देखिए, चीजों को वेरीफाई करके देखिए, आपको सही और गलत का खुद ही पता चलेगा। जो बातें सही लगे उसको अपना लीजिए, जो नहीं सही लगे उनको छोड़ दीजिए, और कुछ देखिए, कुछ और इम्प्रूव करिए, कुछ और सही लेकर के आइए। तो ये जो पूरा हम लोगों का कोर्स है, ये बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग, है ना। शुरू आपसे होता है, आपके और हमारे बीच, मतलब जो भी आपको ये वर्कशॉप लेते हैं हमारे और आपके बीच में शुरू होता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये अपने आप में चलने ही लगता है। और क्या होता है, मोस्टली ये होता है कि आप क्या होना चाहते हैं, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। आप क्या हैं और आप क्या होना चाहते हैं, आपकी सहज स्वीकृति किसके लिए है। तो इसके बीच में आपका ये डायलॉग चलता ही रहता है, और उसका पर्पस यही है कि आपके अंदर ये डायलॉग हम लोग शुरू करा लें। ठीक है, तो अब अगर आप लोग कुछ प्रश्न करना चाहें तो थोड़ी देर का शायद समय है अभी। हाँ सुशील जी, कुछ समय है ना अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कुछ प्रश्न ले सकते हैं। Thank you, ma'am, for such a wonderful lecture on human values. Dear participants, if you have any questions regarding the presentation. तो क्योंकि एक्चुअली तो अगर ये ऑफलाइन हो रहा होता तो बिल्कुल ये तो डायलॉग के फॉर्म में होता है, पूरा इंटरेक्टिव होता है। अब क्योंकि ऑनलाइन करना पड़ रहा है और थोड़ा सा
समय सीमा भी थी, लेकिन फिर भी अभी भी इंटरेक्टिव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी 15 मिनट थे हम लोगों के पास, तो मैं पूछ सकती हूँ आप कुछ पूछना चाहते हैं। If you have any questions or any queries, one can open their mic and can ask directly. सबका हाँ माइक आप अनम्यूट कर दीजिए। Yes, अभी unmuted है मैम from my side. वो अभी अपने आप मैम unmute कर सकती हैं and can ask question. Yeah, Neelam, Divya ma'am, do you have any question from your side? Thank you so much, ma'am. Rachna, ma'am. हाँ, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Yes, ma'am. Ma'am, actually, I am also from HBTI. अच्छा। Yes, ma'am. तो मैं एक्चुअली आपको, हम लोग एक बारी वेस्ट कैंपस में आपके घर के सामने हम लोगों को हॉस्टल दिया गया था। ओके, आप किस पे थे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I was MTech Oil Technology at HBTI. So आपको हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर उसके में देखा, तो आज ह्यूमन वैल्यूज पे सुनना तो बहुत ही अच्छा लगा। So it was a very nice session और बहुत कुछ सीखने को मिला। Thank you so much, ma'am. I enjoyed the session a lot. बहुत अच्छा था मैम। चलिए, आपके कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न जरूर मन में आए होंगे, पूछ सकती हैं। प्रश्न आए थे मैम बहुत सारे, जैसे आपने संबंधों की बात की, उसी में एक चीज है कि हम जैसे हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं तो एक सोशल बिहेवियर प्लस सोशल सर्कल में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई थिंक। मतलब ये एक जो व्हाट आई कैन कनेक्ट की, जो लोग थोड़े से आइसोलेट रहते हैं, जो लोगों से बात नहीं करते हैं, तो वो उनमें वो चीज, जैसे आप समृद्धि की बात करें या संबंधों की बात करें, तो वहां वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हमारा सोशल सर्कल, सोशल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, तो वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स डे बाय डे एंड वी इनकलकेट दीज थिंग्स इन आवर बिहेवियर। सही है, बिल्कुल सही है। और अभी अब जो आप सोशल की बात कह रहे हैं, तो अभी देखा ही है ये पिछले 1-1.5 साल में कोरोना में जब हम लोग एक दूसरे से कटे हैं, तो कितने केसेस डिप्रेशन, क्योंकि बेसिकली देखिए अगर आप तो वही सह स्वीकृति के आधार पर देखते जाएं, तो हमारे अंदर स्वीकृति तो संबंधों में रहने की ही है। सह स्वीकृति तो हमारी संबंधों की ही है। कभी भी इसकी स्वीकृति नहीं होगी कि आप बिल्कुल अकेले रहिए ना। स्वीकृति तो तभी उसी की मिलती है जब आप संबंधों के साथ रहने जाते हैं। तो सह स्वीकृति तो संबंधों के लिए है। तो जब आप सह स्वीकृति से अलग हटेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो आएंगी, किसी ना किसी फॉर्म में तो आएंगी। हाँ, लेकिन इन संबंधों को समझने की बहुत जरूरत है। एंड दिस लास्ट ईयर यू आर राइट कि पिछले 1.5 सालों ने वाकई में बहुत कुछ सिखाया है, बहुत यस मैम, बहुत कुछ सीखा है। तो लोगों से पर्सनली लोगों की हेल्प करना, सीखना, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अभी आप कहाँ हैं नीलम जी? आप कहाँ हैं अभी? मैम मैं गुड़गांव में हूँ। यस मैम, मैं एज एन एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। यहीं पे एक इंस्टीट्यूट है, तो वहीं पे एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। हेलो मैम, मेरा नाम अर्पित शुक्ला है मैम। मैम मेरा एक प्रश्न है कि आप थोड़ा सा जो चीज बारे में कहाँ पर आप? जी मैम, मैं दिल्ली में रहता हूँ इस समय। मैम मेरा एक प्रश्न है कि आपने जो चीज़ें डिस्कस करी स्लाइड्स में मैम, जैसे कि शिक्षा सबसे ज़रूरी है, उसके बाद फिर अच्छी समझ, और अच्छी समझ के साथ साथ रिलेशन, और ये सारी चीज़ें मैम देखा जाए तो मैम सिटी एरिया या शहर जो एरिया है मैम, वो पढ़े लिखे लोगों ने ही तैयार किया है और बनाया है अपनी सुविधा के अनुसार, और उसको उस हिसाब से यूटिलाइज भी कर रहे हैं। बल्कि मैम जो विलेज एरिया है, जो इतना समृद्ध नहीं है, पढ़ा लिखा भी इतना नहीं है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वेस्ट मैनेजमेंट या अदर चीज़ों को, जो है नेचुरल चीज़ों को आज भी समेट कर रखे हुए हैं। यही तो मैम, तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि एक शिक्षित यानी एजुकेटेड पर्सन क्यों ऐसे चीज़ों को जो है, ऐसी चीज़ों को निर्माण, परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है जो मतलब नेचुरल के नेचर के साथ जो हार्मफुल कंडीशंस क्रिएट कर रहा है, आगे आने वाली पीढ़ियों को नहीं बढ़ने दे सकता। यही इसी को तो डिस्कस किया ना कि हमने जो शिक्षा चल रही है अभी हमारे समाज में, वो मुख्यतः किस पर केंद्रित है? फिजिकल फैसिलिटी पे ही हमने उसको केंद्रित कर रखी है शिक्षा को। तो वही हम शिक्षा दे रहे हैं, वही बच्चे सीख रहे हैं, आगे चल करके वही अपने
कार्य व्यवहार में लेकर के आ रहे हैं और उसी तरह का समाज बना रहे हैं। जब हमने संबंधों को छोड़ दिया है, हमने राइट अंडरस्टैंडिंग को छोड़ दिया है, तो हम नहीं है, तो हम प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं, हमें संग्रह ही करना है, इसी के आधार पर हमने अपने समाज की रचना हम कर रहे हैं। तो क्या ये कहीं जो संस्कार वाला भाव है ना, वो कहीं छूट गया। शुरू से ऐसा था ऐसा हम नहीं कह सकते, ट्रेडिशन में बहुत चीजें ऐसी नहीं थी, क्योंकि तब आदमी ने मानव ने उसको समय के साथ सीखी थी। जो चीजें समय के साथ सीखी थी, टाइम टेस्टेड थी, उनमें कहीं ना कहीं इन चीजों का फुलफिलमेंट हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते गए और सो कॉल्ड हम उन्नति करते गए, हम आगे बढ़ते गए, डेवलपमेंट हम करते गए, उस डेवलपमेंट की दौड़ में कहीं हम शिक्षा संस्कार को हम कहीं छोड़ आए, है ना। वो अब थोड़ा सा जब आप मॉडर्न देखिए, अभी आजकल बात करनी चाहिए, अभी थोड़ा समय पहले चले जाइए, जैसे हम लोग थे, या एक और जनरेशन पीछे चले जाइए, तो बहुत सारी चीजें हमने समझी नहीं थी, लेकिन एक मानी जाती थी। ऐसा चल रहा है, ऐसा काम मत करो, जैसे कि हमारी नदियों की बात हुई है ना, तो हमारी परंपरा में बहुत सारी चीजें थी। गंगा जी के किनारे कहीं भी आप गंदगी नहीं फैला सकते, वो हमारी परंपरा में थी। हमने उसको एक माँ मान रखा था, गंगा माँ मान रखा था, हमने देवी जो भी मान रखा था, हम उसके आसपास गंदगी नहीं फैलाते थे। तो बहुत सारी चीजें परंपरा में चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ पीढ़ियों में वो परंपरा को भी हम छोड़ते चले आए, परंपरा को हम छोड़ते चले आए, हमने नया सीखने और समझने के लिए प्रयास नहीं किया। तो कहाँ जाएंगे? अब उसकी परिणति आज हम लोगों को दिख रही है, किस तरह के शहर हम बना रहे हैं। अभी वेस्ट मैनेजमेंट का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, आप दिल्ली की बात ले लो, कानपुर की बात ले लो, किसी भी शहर के बाहर चले जाओ, क्या हो रहा है ना, कूड़े का पहाड़ बनता नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो कोई हमारी ऐसी इच्छा नहीं है, हमारा ऐसा इंट्यूशन नहीं है कि हमें कूड़े का पहाड़ लगाना है, लेकिन क्योंकि हमें समझ नहीं है ना, हम टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं कि कूड़ा ना इकट्ठा हो, या जो वेस्ट हो रहा है उसको हम कहीं और उसको यूटिलाइज कर पाए। वो हमें सही समझ देने की जरूरत है। अगर समझ आएगी, अगर हमारे बच्चों में समझ आएगी, वैल्यूज की समझ आएगी, वैल्यूज के साथ में फिर हम आगे स्किल भी उसी तरह से डेवलप करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इन समस्याओं को खत्म नहीं कर पाएंगे। हम बिल्कुल इनको रिजॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए सही समझ और संबंधों का निर्वाह, उसकी जरूरत तो है ही, उसको तो करना ही पड़ेगा। जी मैम, शायद इसीलिए अभी रिसेंट सिनेरियो को देखते हुए जापानीज एजुकेशन सिस्टम ने अपने यहाँ ये इम्प्लीमेंट किया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन वहाँ के बच्चों को दी जाती है, वहाँ पे ही जो है बच्चे वेस्ट मैनेजमेंट के सारे स्किल्स वहीं से ट्रेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ एक वेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं है ना, जब आप जाएंगे तो बहुत सी सबका ध्यान रखना पड़ेगा ना। वेस्ट मैनेजमेंट तो एक, वो तो आपका सुविधा वाला पार्ट हो गया ना, लेकिन संबंध बहुत इम्पोर्टेंट अभी पीछे छूटते जा रहा है हमारा, इसको ध्यान रखते हुए। Dear participants, any more questions from your side? डॉक्टर सुशील, अगर आप परमिट करें तो मैं एक क्वेरी रखूं अपनी। अच्छा, नमस्कार अस्थाना मैडम, मैं विश्वविद्यालय से हूं, CSEM यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग में अध्यापक हूं। अच्छा, तो आज में SBTI का स्टूडेंट भी रहा हूं। और आपका स्टूडेंट है आप? मैं SBTI का स्टूडेंट रहा हूं। 1995 में मैंने बीटेक फूड टेक्नोलॉजी किया। अच्छा, तो शायद मैंने पढ़ाया भी हो आपको, हो सकता है। फूड टेक्नोलॉजी में आपने नहीं पढ़ाया था मैडम उस वक्त। अच्छा, नहीं पढ़ाया। तो और मैं आज आपका ये लेक्चर में ऐसा लग रहा है कि ये विषय तो मैं कई बार सुन चुका हूँ, और लेकिन लेक्चर आपका पहली बार मैंने सुना, तो और मैंने एंजॉय किया, इसको बहुत अच्छा लगा। मैडम, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे सवाल का कोई आप जवाब दें, मैं आपसे जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे डिस्कोर्स करना चाहता। अगर आप सामने होती तो मैं थोड़ा समय लेता आपका। आ सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं, आप बगल में है बिल्कुल हमारे इंस्टीट्यूट से। लेकिन मैं एक विषय उठा रहा हूँ, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, इस पर आप अपना लाइट दें, थोड़ा अपना विचार रखें। संबंधों में जो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, और स्वयं से जो अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन है, क्या अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है? मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझे स्ट्रेट जवाब नहीं दीजिए, और उसका यस नो में कोई जवाब शायद हो भी ना, लेकिन इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या मनुष्य को एक दूसरे से अपेक्षा रखनी चाहिए। मैं बहुत सीधे बात करूं, अगर मोटी मोटी, कि
क्या पति को जब ऑफिस से घर पहुंचे तो पत्नी से उम्मीद करनी चाहिए कि वो उसको पानी पिलाए या एक कप चाय दे या नहीं, या इसी प्रकार स्वयं से अपेक्षा रखनी चाहिए या नहीं? क्या अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या विजन होना चाहिए? देखिए, आपने प्रश्न बहुत बढ़िया है ना। अब आप ये बताओ कि ठीक है, आप पति और पत्नी की बात कर रहे हो, है ना। पति पत्नी की जगह अगर हम ये कहें कि कोई बाहर से आया है, आप मान लीजिए आप बाहर से आए हैं तो आपकी पत्नी है, या अगर आपकी पत्नी बाहर से आई है, आप घर पर है, तो आपको खुद कैसा लगेगा? आपकी ये अपेक्षा है कि मैं घर से पति हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, घर में आया हूँ, तो पत्नी मुझको चाय दे। ठीक है, कोई इस अपेक्षा में कोई बुराई नहीं है। बाहर से थक के आए, आप एक कप चाय की, अगर आप संबंधों के साथ रह रहे हैं तो आप अपनी पत्नी से एक कप चाय की अपेक्षा बिल्कुल कर सकते हैं। संबंधों में अपेक्षा होना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन हमको बहुत से विद्वान लोग ये सजेस्ट करते रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और कुछ समय से कि सचान साहब आप अपेक्षा करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आप दुखी रहेंगे। नहीं, देखिए, अब आपने प्रश्न उठाया है, तो एक तो ये है कि आपको इसको सहज स्वीकृत के आधार पर ही देखना पड़ेगा, है ना। क्या आपको ये स्वीकार्य है कि अगर आपकी पत्नी आ रही है, आप उसको एक कप चाय दे दो, है ना। तो इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं कि अगर कोई भी थका आ रहा है और आपके पास, आप कर सकते हो, आप उसको एक कप चाय हमेशा दे दोगे। पर प्रश्न इतना छोटा ये सब नहीं मैंने एक है। एग्जांपल दिया। हाँ, वो इतना छोटी चीज नहीं है उसके पीछे, क्योंकि जब हम संबंधों में रहते हैं तो वो, आपने उस दिन आप आए थे, मैंने आपसे ये कहा था, आपने ये नहीं किया, तो अब आज आपको मैं चाय क्यों दूं, तो वो बहुत सारी पीछे की चीजें चलती रहती हैं, शिकायत भी जुड़ जाएगी। वो बहुत सारी चीजें होती है ना। तो उन सबको कहीं रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक वर्कशॉप कर लो, और आप CSGMU में तो अभी ये ओपन है, AICT की वर्कशॉप 7 दिन की वहां की फैकल्टी कर रही है। आपके यहाँ कटियार जी जो है ना, वो बहुत लोगों को करवा चुके हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप, अब ऑनलाइन वर्कशॉप चल रही है, आपको कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आप बहुत आराम से अपने घर से इसको कर सकते हो, और शायद लीव का प्रोविजन भी हो गया अगर आप ये वर्कशॉप करें 7 दिन। तो अगर आप 7 दिन की वर्कशॉप करो ना, तो ये जो आप ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि संबंधों में अपेक्षा मत करो, नहीं तो आप दुखी रहोगे, ऐसा नहीं। और आप इसको समझ पाओगे, क्योंकि संबंध है तो अपेक्षा तो होगी। ऐसा नहीं है कि आप फिर संबंध का मतलब क्या है ना। पर इसको समझने की जरूरत है, और अगर वो अपेक्षा फुलफिल नहीं हो रही है तो उनके कारणों को जानने और समझने की जरूरत है ना, कि ऐसा अगर व्यवहार आया है दूसरे की तरफ से तो क्यों आना। आप अपने घर में ही देखने जाइए, है ना। एक बच्चा है, आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो क्या होता है, बच्चा है या कोई बूढ़ा है ना। गेस्ट आया, आपने अपने बच्चे को या उनका परिचय करा दिया कि भाई ये मेरा बेटा है, ये कर रहा है, बच्चा खुश, थोड़ी देर घूम घाम करके चला जाता है। आप उसका परिचय मत कराइए, फिर देखिए क्या होता है घर में, है ना। वो बच्चा इधर से आके कुछ इधर गिराएगा, कुछ उधर शोर मचाएगा, कुछ इधर खुद से करेगा, कि कहीं आपका ध्यान जाए। तो क्या है, बेसिक चाहना उसकी सम्मान की, उसको अपना कहीं सम्मान चाहिए। तो मतलब ये रिश्ते और संबंध, इतना इसको समझने के लिए इसकी पूरी एक वो है, आप संबंधों को कैसे निर्वाह कर सकते हैं, और फिर उन संबंधों को निर्वाह करने के लिए क्या व्यवहार आपसे अपेक्षित है, आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। जब हम अपने व्यवहार में ये सुनिश्चित कर पाते हैं, अगर अपना हमारा व्यवहार सही होता है, संबंधों को पूरा कर रहा होता है, तो दूसरा भी कहीं ना कहीं आपके व्यवहार को समझता है, करता है, और फिर उसकी तरफ से भी उसकी प्रतिपूर्ति होती है। इतना आसान नहीं है। जैसे मैं कह रही हूँ कि एक बार आपने उसको समझ लिया और दूसरी बार आपने चाय मांगी तो आपको चाय मिल जाएगी, इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये दिनों की, महीनों की, बहुत समय की गांठें होती है। तो इनको, संबंधों को समझ करके उसके आधार पर इनको सुलझाना पड़ता है, और सुलझाइए तो इनका हल आता है। ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने बहुत हद तक इसको करके देखा। जैसे आप जानते ही हो, HBTI में थी मैं, तो HBTI में मैं 91 से थी, बगारिया जी के साथ हम लोग रहे हैं। तो जी, हम मैं उनके आश्रम भी जाता रहा हूँ और मैंने अटेंड किया है। तो हाँ, मुझे बाय द वे मैं हर बार यही कहता हूँ कि मुझे कोई नई बात नहीं जानने को मिली। आपने पूरी वर्कशॉप की? हाँ, मैंने की है, और मैं घर पर उनके जाता था, SBTI कैंपस में। मुझे कुछ भी नया नहीं पता लगा, कुछ भी नई बात आपने नहीं करी, कुछ नया है ही नहीं, कुछ भी नया नहीं है। भी आपके हमेशा से हैं। दिस इज ऑल इनसाइड द ह्यूमन बीइंग। अगर आप साफ समझ रखते हैं तो आपको हमेशा से है, सही समझ हमेशा से है, उसको समझने की जरूरत है। नया कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं, नया बट इट कुछ वंडरफुल कंपाइलेशन ऑफ द ऑल थॉट्स। एक बुक सिर्फ समझने की जरूरत है, क्योंकि कभी हमने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है।
है ना, मानव नमस्ते। देवता को नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, हाँ सत्यान। सत्यान चाहिए जी आप। जी। मैं सचान सर को सजेस्ट करूंगा कि एक तो ये वर्कशॉप मतलब अगर कर लें इन फ्यूचर तो ज्यादा ठीक है। और ये जो प्रश्न है कि संबंधों में जो है अपेक्षा ही क्यों रखें, तो संबंधों को पहले तो समझने की जरूरत है कि संबंध है क्या। और मुख्य रूप से जो संबंध की हम जब बात करते हैं तो उसमें भाव की बात करते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम अपेक्षा रखें कि हम घर जाएं तो हमको एक कप चाय मिले। हो सकता हो वो भाव पहले से ही हो, बिना कहे भी वो चाय आपको मिल जाए। तो मुख्य रूप से संबंध में भाव का होना है। अगर वो भाव ठीक है तो आपको चाय मिलता है, और अगर भाव ठीक नहीं है तो हो सकता हो वो झगड़े के रूप में या किसी और बात के रूप में निकल कर आए। तो मुख्य रूप से अगर संबंध को हम देखने जाए तो संबंध में जो भाव है उसको हम लोग कितना ठीक से कर पा रहे हैं और कितना जी पा रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है, जिसको मैडम ने बीच में मेंशन भी किया था कि संबंध में वो भाव है विश्वास, सम्मान, स्नेह, वात्सल्य। तो उसको ठीक ठीक अपने में, और अगर अपने में इंश्योर हो जाए तो जिनको भी हम संबंधी के रूप में देख पाते हैं उसमें भी वो भाव सुनिश्चित हो जाए, जिससे कि जो म्यूचुअल हैप्पीनेस की बात हो रही थी वो ठीक ठीक सुनिश्चित हो जाए। तो मुख्य रूप से तो हमको लगता है कि संबंध में वो भाव को समझने की बात है। दरअसल जिसको हम संबंध समझे वो संबंध था नहीं। जी, संबंध वो दे दिया गया, वो भाव का ही कलेक्शन है। वो संबंध में वो भाव अगर नहीं है तो वो संबंध नहीं है। संबंध तभी है जब वो भाव है, बिना भाव के संबंध होता ही नहीं है। तो जैसा जो भाव मैम ने डिस्कस किया कि विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव, अगर वो भाव है तो ही संबंध है। बिना भाव के हम संबंध को सुनिश्चित नहीं कर सकते। मैं तो एक साधारण ह्यूमन बीइंग हूँ। एक्सपेक्टेशन मेरे जीवन में जब तक जीवित हूँ खुद से रहेंगी, दूसरों से भी रहेंगी। फिलहाल तो मैं ये समझता हूँ, अब कोई वर्कशॉप करके मेरी ये ओपिनियन बदल जाए तो अलग बात है। जी लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन ही दुनिया को चलाता है, इसी में मजा है, इसी में खुशी है। परिवार भी इसी से है, समाज भी है। अगर एक दूसरे से आप एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, अगर हमने कुछ भला अच्छा किया और अगर रिटर्न में हम कुछ नहीं चाहेंगे तो मतलब हम जीवित भी नहीं है, इसका मतलब। जी। तो ये उसमें भी कहीं सर नहीं, अपेक्षा रखना एक हद तक ठीक है, लेकिन उसमें भी इस बात को सुनिश्चित करें कि उस अपेक्षा के पीछे भाव क्या है, किस भाव से हम अपेक्षा रख रहे हैं, है ना। तो पत्नी से किसी चीज की अपेक्षा हो सकती है, भाई से किसी अलग चीज की अपेक्षा हो सकती है, पिता से किसी अलग चीज की अपेक्षा हो सकती है। लेकिन इन संबंधों में, अलग अलग संबंधों में, पिता के साथ, है ना, भाई के साथ, पत्नी के साथ, इन तीनों में हमारा भाव कैसा है वो महत्वपूर्ण है। ठीक बात है जायसवाल साहब, आपने कोशिश जी करी जी हमको समझाने जी की। जी और जी। वैसे मैं कठिन स्टूडेंट हूँ, जल्दी समझता नहीं हूँ। उसके लिए आवश्यक है सर, अगर आप ये जो 8 दिन का वर्कशॉप होता है हम लोगों का, अगर उसको एक बार आप दोबारा कर पाए थोड़ा ठीक से। अभी किसी ने मांगा है, प्रवीण कुमार जी ने, तो एआईसीटी की जो वर्कशॉप चल रही है उसका डिटेल थोड़ा सा उपलब्ध करा दीजिएगा। जी जी ठीक है मैम, ठीक है मैम। नमस्ते सचान सर, मैं अंकित बोल रहा था। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अंकित? जी सर, आपका ही स्टूडेंट हूँ सर। आप अंकित हाँ गुप्ता सर। हाँ हाँ हाँ। जी सर, नमस्ते सर। बहुत अच्छा वर्कशॉप हुआ है आईटीएच का। मैं देखो विश्लेषण करता रहता हूँ। मुझे कुछ लोग कहते हैं सचान साहब आप विश्लेषण ना किया करिए, मैंने कहा यही जॉब है मेरा। और मैंने देखा कि बहुत अच्छे स्पीकर आए और बहुत अच्छा लगा। हालांकि कमियां सभी जगह होती हैं, अच्छाइयां सभी जगह होती हैं, और मैं उसको देखता रहता हूँ। मैं जीवित व्यक्ति हूँ अंकित। दरअसल मुझे कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप सर ये वो अच्छी कह नहीं बात है सकते। कि ये अच्छी बात है कि सर आप विश्लेषण करते हैं, और ये विश्लेषण जब आप ठीक से करेंगे तो आप इसको ठीक से और समझ पाएंगे और गहराई से इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अच्छा है, और विश्लेषण करना चाहिए। जी अंकित सर। जी सर, सर वही मैं कह रहा था कि जैसे वर्कशॉप सर हम भी बहुत सारा अटेंड किए, तो वो संबंध की बात है सर कि संबंध में भाव है ही, हम देखें चाहे ना देखें, हम देखते हैं तो संबंध में भाव हमको दिखते हैं, और दिखते हैं तो हम निर्वाह कर पाते हैं।
हम नहीं देखते हैं तो हम नहीं निर्वाह कर पाते हैं। भाव है ही सर, हमारा संबंध प्रकृति के हर एक कण से है सर, हर एक अस्तित्व के हर एक एक इकाई से संबंध है। देखे तो निर्वाह हो पाता है, नहीं देखे तो नहीं निर्वाह हो पाता है, इतना ही है सर। जी बिल्कुल हम ठीक बात। देखते हैं समझते हैं तो निर्वाह होता है, नहीं देखते हैं नहीं समझते तो नहीं निर्वाह कर पाते हैं, ऐसा है। तो मैं यही कह रहा था कि मैं उन संबंधों को, उस भाव को शायद नहीं अभी समझ पा रहा हूँ। आप हम जी, मेरी आवाज पहुंच पाई? मैं कह रहा था कि अभी शायद संबंधों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ज्यादातर तो मुझे किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत नजदीकी, जो जिनको मैं नजदीकी समझता था या संबंधों का होना समझता था, वो फुलफिल नहीं होता दिखता। तो शायद मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे और अभी ट्रेनिंग की, वर्कशॉप की जरूरत है। तो मुझे मदद करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you, participants. Dear participants, we will again resume back after the lunch session for the valedictory session and the quiz that has to be happened today itself only. So I request all the participants to again join back at 2:30 a.m. for the feedback, and then we'll start the valedictory session for the program. Thank you all.